ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি দিয়া পদ ছায়া সদকে আমায় তোমার চরণ ধরি দিয়া পদ ছায়া সদকে আমায় তোমার চরণ দিয়া পদ ছায়া সদকে আমায় তোমার চরণ ধরি দিয়া ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি ছয়বে গোদমি ছয় দশ সুদী ছয় গুণ দেহদাসে ছয় বেগোদমি ছয় দশ সুদী ছয় শত সঙ্গ দেহ খে আমায় বসেছি সঙ্গের আসে দেহ গে আমায় বসেছি সঙ্গের আছে ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি একাকী আমায় নাকি পায়ে বল হরিনাম সংকীর্তনে একাকী আমায় নাহি পায়ে বল হরিনাম সংকীর্তনে তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে তুমি কৃপা করি তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম
ধনে কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমারও শক্তি আছে। কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমারও শক্তি আছে। আমি তো কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, আমি তো কাঙ্গাল। বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর আমি তো কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, আমি তো কাঙ্গাল। ধাই তব পাছে পাছে, ধাই তব পাছে পাছে, আমি ধাই তব পাছে পাছে, ধাই তব পাছে পাছে। আমায় সঙ্গ ছাড়া করো না গো, সঙ্গ ছাড়া করো না। আমায় সঙ্গে সঙ্গে রেখো মোরে, সঙ্গ ছাড়া করো না গো, সঙ্গে সঙ্গে রেখো মোরে, সঙ্গ ছাড়া করো, সঙ্গে সঙ্গে রেখো মোরে, সঙ্গ ছাড়া করো না গো, সঙ্গে সঙ্গে রেখো মোরে। আমি বহু জন্মের অপরাধী, সঙ্গ ছাড়া করো না গো, বহু জন্মের অপরাধী, সঙ্গ ছাড়া করো। জয় জয় গুরুদেব 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 গুরুদেব। এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গো সাই, এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই, এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই। পতিত পাবন তোমা বিনা কেহ নাই, পতিত পতিত পাবন তোমা
তাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায় যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায় যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায় যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে এমন দয়ালো প্রভু কে বা কোথা পায় এমন দয়ালো প্রভু কে বা কোথা আর এমন দয়ালো প্রভু কে বা কোথা পায় এমন দয়ালো প্রভু কে বা কোথা গঙ্গার পরশ হইলে পর্যাতে পাব গঙ্গার পরশ হইলে পর্যাতে পাব গঙ্গার পরশ হইলে পর্যাতে পাব গঙ্গার দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার হরিস্থানে অপরাধে তারে হরির নাম হরিস্থানে অপরাধে তারে হরির নাম তোমার স্থানে অপরাধে নাহি কয়না তোমার স্থানে অপরাধে নাহি কয়না তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম গোবিন্দ কহে নমর বৈষ্ণব পরা গোবিন্দ কহে নম বৈষ্ণব পরা প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধুলি প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধুলি নরোত্তমে করো দয়া আপনার বলি নরোত্তমে করো দয়া আপনার বলি দয়া করো হে পতিত পাবন বৈষ্ণব ঠাকুর দয়া করো হে দাসের অনুদাস দেনে দয়া করো হে
ঠাকুর দয়া করো গে দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর So it's the Ekadasi day just after Janmashtami and Vyas Puja, 125th Vyas Puja of Srila Prabhupada. And on this Ekadasi day, His Holiness Gopal Krishna Maharaj appeared in this world 77 years ago. I can't imagine. I'm 72. I can't imagine how I got this far. So I'm completely in awe of His Holiness Gopal Krishna Maharaj. He's completely dedicated to Srila Prabhupada's mission. He had a chance to become very, very wealthy as an executive in the, I guess it was Coca-Cola company. They're still going on after all these years, so getting in so early, he would have been very, very wealthy. But he gave up all of that for spiritual wealth. And he loves to make arrangements for Prabhupada's books to be distributed and printed, and every way I'm just amazed. No other city in the world has so many temples like Delhi. This is all the grace credit of His Holiness Gopal Krishna Maharaj. How many are there now? I think they just opened another one recently in Panchkula or someplace, I don't know. Wasn't there a new one just opened? How many? There's 15, 16 different temples. Even Calcutta. Calcutta should be ashamed. That's the first temple in India. Still, there's only one, and maybe a couple of little satellite centers. But in Delhi, Raj is so dedicated to preaching. I'm simply in awe. We can't imagine how dear he must be to Srila Prabhupada and how dear he must be to Sri Krishna. Sri Krishna himself says in the Bhagavad Gita that that person who preaches his message is more dear to me than anyone, and never will there be someone more dear to me than he. So we can't imagine how dear Gopal Krishna Maharaj is to Prabhupada and to Krishna. We can imagine 16 temples in one city, and thousands. I'm just amazed after Mangalarika, I chant my rounds walking around the temple. So many people. They look like ordinary people, but they all have bead bags and tilak. Maharaj has done so much wonderful preaching. It's just, I'm completely in awe. And his sadhana is impeccable. I have seen, we've gone to programs with him. I remember so many programs with him, and we stayed up quite late at night. And still, he was right up early in the morning. You'd always see him in Delhi temple, always giving artik, a Mangal artik time. His sadhana is completely perfect. He's dedicated to Srila Prabhupada's mission. You're all very, very lucky to have such a wonderful spiritual master to guide you in spiritual life. And I give all my, anyway, I can't give blessing to Maharaj, but anyway, whatever blessings I have, I give to Maharaj and to all of you, and I hope you all preach just as vigorously as Maharaj. Unfortunately, there's a online class in a little while, so I'm going to have to leave early and not be able to hear all the wonderful glorifications. But just I wanted to say, he's a dynamo of Krishna consciousness. I cannot imagine so many temples, so many thousand disciples. Just amazing.
His Holiness Gopal Krishna Maharaj ki jai. I first met Maharaj, Gopal Krishna Maharaj, probably way back in 1973, I guess early 1973, when at that time I was with Srila Prabhupada, traveling with him. And of course, first place I noticed him was on the morning walks with Srila Prabhupada in New York City, and then in other places. And he's 77, so he was a few years, seven years older than I was. At the time I was 20 years old, so he was already 27. Even there was I always saw a difference in the level of surrender, the level of service that the different devotees had that joined just like him from 1968. He was, as we've seen, I'm sure people are saying, although we'll be saying, he was looking, Maharaj was searching for the absolute truth. He describes how he was going to various temples in 67, going to temples, mosques, churches, and but of course he was meant to become disciple of Srila Prabhupada. And as Dinabandhu Prabhu was saying, over the years as I see him, I find him to be very remarkable. His level of service, his energy that he has, even still at this age, as he said, in Delhi you always see him doing Mangal Arati in the temple. That's everywhere he goes. If he's in Vrindavan, you're going to see him on the altar at 4:30 in the morning. And then afterwards you go to his room and he has an entire temple, has so many Shilas, deities. And if he was just doing that, taking care of them, it would be a wonderful service. But that's just scratching the surface for Maharaj. He's involved so much, so many temples we see. But I'm always impressed with his dedication to book distribution. As we know, Prabhupada said so many things. Most important was a word or a phrase Prabhupada would use, but he would use it in different ways. Just like some temples they claim, Prabhupada said their deities were the most beautiful. He said it in Los Angeles, he said it in London, he said it in various places because he didn't make a different level. It didn't mean other things were less beautiful. They were less beautiful. Always most beautiful. And book distribution, of course, it was most important thing. And as years go by, we've been talking about this more and more here, how we realize whatever else happens, to distribute Prabhupada's books is most important for everyone in society. And it impresses me very much. Of course, now he has the largest Bhagavad Gita as it is in the temple. Association with Modi, he's recognized on so many levels for the activities that he's done. So that also, I see that how he checks many boxes. We see a devotee of Vaishnava, how they have good sadhana, nice preaching, nice way they deal with. So they're all different little check marks. Maharaj, he has a lot of check marks. He does everything. He's, over the years since I've seen him, he's just become more and more wonderful. I'm happy to be in a place here in Vrindavan. I never think about this generally, about the GBC, all these things, but I'm very happy to be under his care here at one level or another. If he comes here, even for a few minutes, I can go see him. He's always very welcoming. And I like the fact that he just sees so many books of Srila Prabhupada getting distributed. He's never had an interest in writing so many books. He takes the pleasure
in understanding what Srila Prabhupada has done. And when one understands that, just like Prabhupada, Prabhupada said, if I did any miracle, if there's anything I've done which is great, it said I followed my spiritual master's instructions. Right? All the instructions. And that's what I see what Maharaj does. That's his joy. It's his duty, it's his service, and he's accepted it to his whole life up until this day. And I'm sure, like all of you, I hope he's around here many, many more years, because he's needed and he's very good for all of us. So I know there's going to be many people over the course of the morning to speak. So I'll stop here, but I'd just like to say I'm very happy to know him and to be on some level, to have him as a friend. Shri Gopal Krishna Maharaj Ki Jai. His Holiness Gopal Krishna Maharaj Ki. Maharaj called me last night. It's been a while. So he should be coming on the 5th, yes? So Vyasa Puja for the spiritual master. Prabhupada said one cannot be a spiritual master unless he's representing the whole Guru Parampara and Krishna. Has to be a pure devotee. And that purity shines through by the results we've heard. I didn't get the chance to hear everything Dinabandhu Prabhu had said, but it's amazing how he inspired so many temples in Delhi and so many professionals on many different levels, what to speak of the Prime Minister and different. He's definitely in a very active preaching mood. Srila Bhaktisiddhanta said there must be life for the preacher. We should not just be sitting idly. And from early morning to late at night, he's seeing devotees, inspiring devotees, helping them with their concerns and challenges, and also pushing on the book distribution. He knows what goes on in all his centers. He has his ways. But the important thing of the Vyasa Puja, just like Krishna instructed Arjuna, first thing is to surrender to the spiritual master. So everyone in this world is hung up on the ego, their own pride and their own abilities. Surrender to someone else seems a little bit belittling or making someone feel subordinate or becoming less. But in the Vaishnava tradition and philosophy, any authorized organization for self-realization knows that the disciple means discipline, surrender to the Guru, and Guru is non-different than Krishna. Just like we say, Srila Prabhupada, like Shakti Vaishavatar, anyone who's empowered by the Lord to preach. I'm just reading now about a Jamil, and the Yamadutas were complaining to Yamaraj, how is it that we were restricted from taking this a Jamil who was very sinful, he acting sinfully throughout his life. And then the whole discussion about chanting the Lord's holy name, and one who becomes like a Vishnu Duta or a devotee of the Lord, he's honored as much as the Lord. He's honored as much as the Vishnu Dutas. The Yamadutas will not come and approach such a person. So the Guru is giving shelter. So we're having this opportunity to take shelter from Gopal Krishna Maharaj, who is clearly, transparently representing Srila Prabhupada, who's clearly connecting us to the Guru Parampara. It's not just a figurehead or man worship. It's not that we're just overly zealous about, the person, but the person who's representing God and representing the Guru Parampara is like that iron rod in fire. It becomes red hot like fire. So he's connecting us. He's connecting you. And we should give all honor and respect to the pure devotee and give honor and respect to Gopal Krishna Maharaj, because the beautiful results are there of expanding Krishna consciousness
and very faithfully following Srila Prabhupada and making sure that we don't deviate. This is a tendency that people like to speculate, create new ideas, concoct or twist and turn things. We need to keep the teaching very clear, transparent, and we can see by his behavior that devotees are strong and Krishna consciousness is being spread. So looking forward to seeing Maharaj in a couple of days and honoring his wonderful feast. We know it's going to be a grand occasion. His Holiness Gopal Krishna Maharaj ki. Hare Krishna. Thank you for the opportunity. I wasn't expecting that. The first time I met Maharaj was in 1989 in the UK. He used to come quite often to UK practically every year. He came for a few years, then he stopped coming for various reasons or others. But he always encouraged me personally. I had just joined ISKCON at that time. He always encouraged me as a great big brother, a father figure, and always he encouraged me to come to Delhi to do some service there. But I told Maharaj I just joined, I'm just a new bhakta, so I needed more time, and he said that's fine. But we always heard of Maharaj's wonderful achievements in ISKCON. It's opening centers, it's having so much responsibility. Now probably the most disliked service anywhere, whether it's corporate world or political world or religious world, is management. And although everyone wants to be part of the management, but it's not for everyone. Everyone is not cut out to be part of the management. And once being one who's tasted the bad taste of management, they don't want to go back into the management. But probably the most important service in running a big organization like ISKCON is management. And Maharaj is very exemplary in that aspect and inspirational for those who are managers, that for how many decades he's been in management and continues to kind of lead in management service of ISKCON. And Prabhupada said this is one of the most important services one can do besides book distribution, because to run an organization, big organization, you require intelligence, and with intelligence one runs the organization. And Maharaj has been doing that for decades, which is very inspirational for me especially. I've been in various aspects of management, and I don't know how he continues to be so strong and lead. That's because he has a strong faith and total dedication to Prabhupada and his organization ISKCON, and especially, as already been mentioned many times, the book distribution aspect. And he always says double whatever books are distributed each year in Delhi and other parts. He always wants to be doubled next year. Then I had lost kind of contact with him for many years until I came to Jain. Then I kind of reconnected with him, and he again always was very kind and always encouraged me, for which I'm very grateful to Maharaj. And even now when he comes to Vrindavan, I always see him as my guide, in fact one of my Siksha Gurus personally. So I'm very grateful, and you're all very fortunate to be his disciples, well-wishers, and may we continue to serve Maharaj so he can continue to serve Srila Prabhupada. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू विमल कृष्ण प्रभु. तो प्रभु जी ने बड़ा अच्छा बताया कि कैसे महाराज मैनेजमेंट में बहुत निपुण हैं. इतने सालों से 40 साल से महाराज मैनेजमेंट सेवा में हैं और बड़े अच्छे से इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को
गाइड करना बहुत मुश्किल से रहा है, लेकिन महाराज कर रहे हैं। मुझे एक बार याद है महाराज ने पर्सनली बोला था कि इस्कॉन में कहते हैं अगर कोई गलत करता है तो अपने आप कृष्ण उसको रिवील कर देते हैं। तो आई हैव सीन दैट महाराज इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन कृष्ण, वो कृष्ण पे बहुत ज़्यादा निर्भर है, और यही स्पिरिचुअल मैनेजमेंट है, अपने बल से नहीं लेकिन वो कृष्ण पे निर्भर करते हैं, और इसीलिए इतने सालों से इतना अच्छा सेवा कर पा रहे हैं। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे इस ग्रेस गुड़ाकेश प्रभु, जो कि महाराज के बहुत ही वरिष्ठ डिसाइपल है, वेरी सीनियर डिसाइपल ऑफ महाराज। He was serving for many years in Bombay. He also goes to Kenya and other parts, Gujarat, for preaching. And now he's in Vrindavan. He has a lot of faith on chanting of the holy names. Many of you must be knowing he chants many rounds and inspires devotees to chant. सब भक्तों को प्रेरणा देते हैं जप करने के लिए। तो बहुत बड़ी शिष्य महाराज के, तो उनसे हम कुछ शब्द सुनेंगे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी गोपाद साहित्य प्रकाश प्रचारण के तमाम साधु हम लोग आज इस पुण्यतिथि में एकत्रित हुए हैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो हमारे गुरु महाराज के इस 77वें सालगिरह पर आप सब लोग का स्वागत है, और हमारे गुरुजन के समान श्रील प्रभुपाद महाराज के डिसाइपलों के चरणों में मैं कोटि से प्रणाम करता हूँ, और साथ में हमारे गुरु भाई, हमारे गुरु बहन जितने भी एकत्रित हुए हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। तो जैसे हम लोग महाराज के गुणानुवाद श्रवण कर रहे हैं, और जैसे हमारे गुरुजनों के समान या हमारे गुरुजनों के मुख से हमने उनके गुणों को श्रवण किया, उनमें से उनके एक महान गुण जिनके ऊपर मैं विशेष उन्हें प्रकाश डालना चाहता हूँ। यद्यपि मेरे में कोई योग्यता नहीं है कि हमारे गुरु महाराज के गुणों को मैं सूक्ष्मता से दर्शन कर सकूं, ये तो योग्यता नहीं होते हुए भी जब हमको प्रभु जी ने बुलाया है तो मैं कुछ गुणगान तो निश्चित करूंगा ही। तो इन सब गुणों में जो प्रभुपाद जी के प्रति उनका समर्पण है, ये उनमें सर्वश्रेष्ठ गुण है, सर्वोपरि गुण। अगर कोई है महाराज में तो मेरी मान्यता है, और मेरी मान्यता के अनुसार वह है श्रील प्रभुपाद महाराज के प्रति समर्पित उनकी बुद्धि या उनका समर्पण। अब देखिए, जिस भाव को हृदय में लाना अत्यंत मुश्किल है, इसी को शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में बताया है। तो कैसे, कहाँ पर क्या बताया है, उनको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो इसमें मैं कोई ये नहीं आपको कहने जा रहा हूँ कि हम में कोई इस प्रकार की योग्यता है, बट उनको कह कर के मैं ये चाहता हूँ कि इसी प्रकार की जो गुणावली, एक महान गुण जो उनमें है, वो आज इस तिथि पर उनको मैं एक विनंती करूँगा, या विनंती के रूप में ये थोड़ा बहुत जो मैं बोलूँगा, ये केवल उनके चरणों में विनंती मात्र होगी। तो आप सब लोग को अगर कुछ अतिशयोक्ति लगे तो आप उदार हृदय है, हमें क्षमा करना। और आज की तिथि पर
उसी गुण की मैं महाराज से अपेक्षा आशा रखता हूँ कि वो गुण अगर उनकी कृपा से मुझ में थोड़ा सा भी आ जाए, जो उनके पास बहुत है, थोड़ा सा भी अगर मुझ में आ जाए तो मैं अपने आप को अत्यंत धन्य समझूंगा। तो वो गुण जैसे श्रुति कीर्ति प्रभु ने बताया कि प्रभुपाद के एक अत्यंत विनम्र सेवक, ये अद्भुत गुण है। देखिए शास्त्रों में उनको इस प्रकार लिपिबद्ध किया है कि गुरु शुश्रूषणम नाम सर्वधर्मो उत्तम उत्तमम तस्मात् धर्मात् परो धर्म पवित्रो नैव विद्यते। साफ लिखते हैं इसमें। हाँ, उसमें बता रहे हैं कि देखिए ये जो गुरु का श्रुण कैसे कैसे सुण अर्थात उनका सुष्ठु रूपेण सेवन, सब धर्मों में जितने भी धर्म है या धर्म का जो भी आचरण शास्त्र में बताया गया है, उन समस्त धर्मों में श्री गुरु सेवन से ऊपर कोई धर्म नहीं है, ऐसा बताते हैं। और जो हमारे महाराज में हाँ, इनके गुरु भाइयों के द्वारा जो गान हुआ हाँ, इनके गुण का, उनको ही मैं रिपीट करता हूँ हाँ, कि वो कितना महत्वपूर्ण गान किया उन्होंने। हमारे गुरुजनों ने जो आगे गान किया वास्तव में वो अद्भुत है। हाँ? तो कहते हैं कि देखिए इनसे बढ़कर और कोई धर्म शास्त्र में सुना नहीं गया है। गुरु सेवन कैसे, तो उनको देखने के लिए थोड़ा हम लोग शास्त्र में जाना पड़ेगा। सबे पुंसान बरो धर्म यतुर भक्ति अधोक्षजे, श्रीमद् भागवत में लिखा गया है। इंद्रियातीत श्री कृष्ण उन अधोक्षज उनको कहते हैं। तो श्री कृष्ण उन इंद्रियातीत श्री कृष्ण क्या कहते हैं, उनकी भक्ति ही समस्त जीवों के लिए सर्वोपरि धर्म है। और उसको अन्यत्र भागवतम में भी बताया गया है। वो कहते हैं कि धर्म मद भक्ति कृत प्रोक्त, बोले मेरी भक्ति ही सर्वोपरि जीवों के लिए धर्म है, ऐसा समस्त शास्त्रों का मत है। श्री भगवान श्री मुख की वाणी है। तो ये वस्तुतः ये समझना चाहिए कि ये जो भक्ति है वो केवल मात्र गुरु के समर्पण के द्वारा ही व्यक्ति को मिलती है। और कोई अपना कुछ भी विचार या कुछ भी महत्व अपनी साधना का रखे तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व है ही नहीं। एकमात्र महत्व है अपने गुरु के प्रति उनका समर्पण, उसके अलावा कोई चीज काम में लगती नहीं है। इसलिए कहते हैं कि वो परम पवित्र है। जो गुरु जो सुश्रुणम है वो अत्यंत सबसे सर्वोपरि धर्म है, उससे ऊपर कोई धर्म माना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु की प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न होते हैं। हम लोग इनको सुनते हैं, गाते हैं रोज गुरु अष्टक के रूप में, है ना। तो इसलिए ये सर्वोपरि धर्म या उनसे पर तस्मात् धर्मात् परो धर्म पवित्रो नैव विद्यते। इससे पवित्र धर्म शास्त्र में कोई वर्णन हुआ है ऐसा नहीं है, बोलते हैं। ये आगम शास्त्र का वचन है। इसलिए सर्वोपरि धर्म है श्री गुरु का सुसेवन। जो हमारे महाराज में सर्वोपरि गुण के रूप में या उनका जो भी सक्सेस है, मेरा समझ है कि वो केवल मात्र इनके आधारित है। जो श्री प्रभुपाद महाराज के प्रति जो उनका समर्पण है, उन्हीं के कारण सब कुछ सक्सेस जो भी हो, वो सब सक्सेस केवल उन्हीं के कारण है। इस श्लोक से मालूम पड़ता है कि इसमें केवल मात्र एक ही है, वो जो प्रभुपाद जी के प्रति उनका समर्पण है। कहते हैं कि ये वस्तुतः एक इसी प्रकार
ये और जितने भी भक्ति अंग है ना, उन सभी भक्ति अंगों में सर्वश्रेष्ठ महाराज के रूप में विराजमान है गुरु सेवन। बाकी कोई कितना भी बोले, कितना भी वो प्रवचन में एक्सपर्ट हो, धारावाहिक बोलने वाले हो, जो कुछ भी हो, है? लेकिन देखा जाता है कभी फेल दिखाई पड़ते हैं। और न केवल हमारे इस इस्कॉन में, बल्कि गौरी वैष्णव समाज में भी ये देखा गया है। यदि हम कोई किसी की निंदा या इत्यादि का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रमाण के लिए ये बहुत द्रष्टव्य है, देखने लायक बात है। देखिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके 2 सेवकों को भेजा था, और जो इतने पावरफुल, वन महाराज, श्रीधर महाराज, विदेश में प्रचार के लिए, और उन्होंने थोड़े ही काल में वापस आके बोल दिया वहाँ प्रचार हो नहीं सकता है महाराज, आप मेहनत मत कीजिए, किसी को भेजे नहीं। हाँ? और सिद्धांत सरस्वती मानने वाले थे नहीं। हाँ, तो देखिए उन्होंने कि श्रील प्रभुपाद को पहला आज्ञा दिया जब मिले तो, हाँ बोले तुम आंग्ल भाषी प्रजा को प्रचार करो, जाओ। और वो गए, और उनको जो सक्सेस मिला उनके गुरु की कृपा से ही मिला। ये उनका कहना है, मैं नहीं कह रहा। वो हमेशा अपनी किताब में चाहता है, बोले ये मेरे गुरु महाराज का यश है, मेरा यश नहीं है, वो जानते हैं। तो हमारी परंपरा लगभग कृपा सिद्ध परंपरा चालू है। इसको ध्यान में रखते हमारे महाराज ने इनके गुरु महाराज के प्रति जो समर्पण किया है, ये एक अद्भुत बात है। और सर्वोपरि साधन उन्होंने कर लिया समर्पित होकर के, इसमें 2 राय नहीं है। क्यों? क्योंकि आज सफलता उनके चरण चूमती है। जहां कहीं भी महाराज का नाम आता है, और जहां कहीं भी वो हाथ डालते हैं, इवन मैं केनिया के विषय में, तो केनिया ज़्यादा जाता हूँ, तो उसके विषय में मैंने सुना था कि वहाँ पर कोई प्रचार में कोई सक्सेस नहीं गया, तो महाराज ने सबको विनती किया कि जरा एक चांस मुझे मिले, इस ईस्ट अफ्रीका के प्रचार का एक चांस मुझे मिलना चाहिए। तो उनके गुरु भाइयों ने या जीबीसी जो कोई है, उनको उन्होंने बोल दिया ठीक है, पर हम चकित हो जाएंगे वहाँ प्रचार सुन करके। प्रभु जी गए हैं, उनको मालूम है जो वहाँ जाता है, क्योंकि इस प्रजा को प्रचार करना माने, अरे यहाँ 10,000 व्यक्ति को प्रचार करो, वहाँ 1 को बनाए, 1 को, वो 10,000 के बराबर है। लेकिन महाराज ने जैसे वो मैनेजमेंट हाथ में लिया वहाँ का, और हमको बोले गुड़ा किस कोई एक आदमी भेजना, केनिया कोई है तो अच्छा। उमापति उस टाइम मैं बोला यार छोड़ो ना धंधा बंदा, वही हमारे धंधे वाले थे, डायमंड वाले। बोला छोड़ो ना यार, बालक बल गया आपको, बोले नहीं बच्चा बच्चा नहीं। बोला तब क्या है, जाइए महाराज की आज्ञा का पालन कीजिए जब वो बोल रहे। बोले कोई बात नहीं है। और वो गए, आज सब चकित है वहाँ पर, और उस लाख 4 लाख घाटे में टेम्पल चल रहा था, और वो टेम्पल का जमीन बेचने की बात थी। बोले उसको बेच दो और कर्जा पूरा करो। और वहीं पर एक ही व्यक्ति ने, जो उनके कृपा पात्र है उमापति, कोई नहीं, एक हस्त प्रचार है। यह अचरज करने वाली बातें, उन्होंने ऐसा प्रचार कर दिया, आज करोड़ों का संपत्ति उस मंदिर के पास है, और भक्त मंदिर भरे हुए हैं। ये अद्भुत प्रचार। इसलिए मैं मेरे गुरु महाराज का गुण, सबसे बड़ा गुण में मेरे ध्यान में जो आ रहा है, वो है प्रभुपाद जी के प्रति उनका समर्पण। अरे कोई भी जीव अपने गुरु के प्रति इतना समर्पित भाव से और उनकी सेवा की लालसा से, या उनकी प्रसन्नता के लिए जो प्रचार करेगा, जो कार्य करेगा, उनको भगवान 100% सक्सेस देंगे, 2 राय नहीं है। वो मिला हुआ दिखाई पड़ता है। अच्छा, इसके लिए एक
श्लोक कोट के यथा कहते सिद्ध रस स्पर्शात ताम्रम भवती कांचनम और सन्निधानात गुरुर एवं शिष्यो विष्णुमयो भवेत्। एक दूसरा श्लोक है उनके ही विषय में कोट करने योग्य श्लोक है। वो कहते हैं कि जो सिद्ध वस्तु है ना, उनको किसी बाहर की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार यहाँ उदाहरण दिया है, यथा सिद्ध रस स्पर्शा ताम्रम भवति कांचनम, बोले उन सिद्ध रस का स्पर्श पा करके जो ताम्र है वो भी कंचन में परिवर्तित हो जाता है। कोई भी योग्यता नहीं है, लेकिन उनमें सब योग्यता आ जाती है। सुवर्ण का अर्थ ये है, समस्त योग्यता वो प्राप्त कर लेता है। और एक ऐसा देखा जाता है कहीं के जीवन में, ऐसे ऐसे लोग हैं जो निठल्ल है, बेकार। जैसे प्रभुपाद जी ने जो करके दिखाया, तो वैसे ही हमारे गुरु महाराज के, हमारे गुरु भाइयों को मैं बहुत लोग को जानता हूँ, तो देखे कोई योग्यता नहीं है, लेकिन उनके द्वारा कुछ प्रचार चल गया। क्यों? यही कहते सिद्ध रस स्पर्शात, इसी को कहते हैं। उनका संस्पर्श प्राप्त करके व्यक्ति में सब गुणावली आ जाती है। अच्छा, कहते हैं कि सन्निधानात गुरुर एवं शिष्यो, ठीक उसी प्रकार गुरु के सानिध्य में, उनकी सेवा के भाव से उनका सानिध्य जिनको मिलता है, वो व्यक्ति शीघ्र विष्णुमय हो जाएगा, अर्थात वो कृष्ण भक्ति में सर्वोपरि हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं। शास्त्र के वचन में क्या डाउट है? कोई डाउट करना भी नहीं चाहिए कभी किसी को। क्यों? उसका कारण है, उनका कारण है। कहते यो मंत्र स गुरु साक्षात यो गुरु स हरि स्वयं और गुरु यस्य भवित तुष्टस्य तुष्टो हरि स्वयं। ये पद्म पुराण में माता देवहूति के द्वारा उच्चारित वाक्य है। वो कहती है कि जो मंत्र है वही गुरु है, और जो गुरु है वही भगवान है। वो कहते हैं कि देखिए वो स्वयं हरि है, और गुरु यस्य भवित तुष्ट, तो जिससे गुरु महाराज तुष्ट होते हैं ना, तत्तुष्टो हरि स्वयं। क्यों? इन तीनों में एकता है। भगवान के भक्त और भगवत मंत्र, ये तीनों में एकता है, इतनी एकता है। इसलिए केवल गुरु की प्रसन्नता को ध्येय में रख करके, उनको ध्यान में रख करके अगर कोई डिसाइपल चलता है तो उनको सक्सेस मिले, वो आश्चर्य का बात। बड़े बड़े विद्वान लोग फेल जाते थे, मैं बोला, और वहीं पर श्रील प्रभुपाद महाराज ने 2 परिवार को भेजा लंदन, और लंदन चकित नहीं, दुनिया चकित प्रचार से। और जबकि निर्णय दिया गया था जर्मनी और यूके में जा करके, उन 2 पंडितों ने निर्णय दिया था। और पंडित माने ऐसे पंडित बोलने में नहीं, फ्लो आउट, चलते हुए शास्त्र। बन महाराज साहब ने इतना बड़ा जगह जो कॉलेज को उन्होंने दिया है। सुख पड़ूगा दोबारा। अच्छा, तो देखिए हम ये समझ सकते हैं, श्रील प्रभुपाद महाराज के पास पंडिताई नहीं थी। ध्यान रखें आप, वो बड़े विद्वान व्यक्ति नहीं थे, जितने विद्वान वो दोनों थे, पर उनके पास एक ही योग्यता थी, वो अपने गुरु महाराज को समर्पित थे। उनके अलावा कोई योग्यता उनके पास इतनी ज्यादा है, ऐसा देखा नहीं जाता है। उनकी किताबों से, उन पाठ करके सब कुछ ऐसे समझ में आता है, लेकिन उनका समर्पण सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरणों में। मेरे गुरु महाराज ने कहा है मैं जाऊंगा, और 2 कपल जहां बड़े पंडित विद्वान फेल होकर के बोल दिया कि वहां कभी प्रचार नहीं होगा, लेकिन ये 2 लोगों ने जाकर के विश्व को चकित कर दिया। 4 व्यक्ति ने जाकर एक क्षमता, केवल मात्र ये उस रस की क्षमता है, जिस रस धारावाहिक गुरु परंपरा में जो उतरता है, और सेवा के कारण तुष्ट गुरु के कारण जो रस उतरता है, बस यही माध्यम है।
दूसरा कोई माध्यम देखा नहीं जाता है। अच्छा, तो ये कहते हैं कि देखिए ये सब तीनों में एकता है। हाँ? यो मंत्र स गुरु साक्षात, यो गुरु स हरि ही स्वयं, और तके गुरु जस्य भवे तुष्ट से, तो तुष्ट हरि स्वयं, इससे स्वयं हरि तुष्ट होते हैं। आप तो विद्वान हैं, आप जानते हैं, समझते सारा बात। बस केवल गुरु की प्रसन्नता, अगर किसी का लक्ष्य है, लेकिन वो लक्ष्य कैसा चाहिए? उन अर्जुन की तरह चाहिए। द्रोणाचार्य ने जब कहा, जब धनुर्विद्या सिखाते समय वो भीम को बुलाया, तो भीम आकर के बोले, भीम क्या देखते हो? बोले देखता हूँ हरा भरा पेड़ है, उधर पंछी बैठा है एक डाली पर। तो गुरु द्रोणाचार्य बोले, उनकी आंख को तुम्हें भेदना है। बोले मत रखो, गदा सीखो, तुम्हारे लिए धनुर्विद्या नहीं है। अर्जुन को केवल आंख दिखाई दे रही थी, आंख। इस प्रकार साधक को केवल अपने गुरु महाराज अगर दिखाई देते हैं, वो सक्सेस। दो राय नहीं है इसमें। ये जो शास्त्र है वो यही बात बता रहा है। भक्ति यथा हरोर मैं अस्ति, कहते तद वरिष्ठा गुरु यदि ममास्ति तेन सत्यन संदर्शी तू मैं हरि। अब इसमें प्रतिज्ञा है, इस श्लोक प्रतिज्ञा का श्लोक है। बोले अगर मेरी भक्ति हरि में, हरि से ज्यादा मेरे गुरु महाराज में मेरी भक्ति है, तो इसके बल पर अगर एक बात सत्य है, मेरे हृदय में इस प्रकार का भाव है, तो मुझे भगवान हरि दर्शन दे। ये शास्त्र है, इसी का बल है, बोलते हैं शास्त्र में, केवल इसी का बल है। देखो इसमें ये बात लिखी गई है कि देखिए इसमें बहुत सुंदर भाव जो इसमें मिलता है, ये गुरु के प्रति समर्पण की भावना मात्र है, और वो भाव मेरे गुरु महाराज में है। आज के दिन पर मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा उनके चरणों में कि हमारा भाव ऐसा कब आएगा। जो भाव उनका समर्पित भावना है उनकी, इस प्रकार का भावना ये मुझ में आज के दिन कम से कम अगर प्रसन्न है गुरु महाराज, तो मैं तो यही उनसे आशीर्वचन चाहूँगा कि कृपा करके आप केवल मात्र मेरी जो थोड़ी भी सेवा होती है ना, उनको आप, भगवान हरि के भक्त है ना, हरि के समान आप उनकी गुणावली है, अतः थोड़े से गुण से भगवान तुष्ट होते हैं। उसी प्रकार मैं उनको चरणों में विनंती करूंगा कि मेरी थोड़ी सी भी कहीं सेवा है, तो उससे वो तुष्ट हुए, और वो तुष्ट होंगे तो मैं जानता हूं कि सब कुछ मिल गया। आप कहते ना हम इज्जिया कि प्रजातिभ्याम तपसो नैव तुष्येत सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषा। अब और एक श्लोक देखते हैं, श्लोक पर श्लोक एक शास्त्र में जो देखने को मिलता है। वो कहते हैं कि मैं पूजा से प्रसन्न नहीं होता, मेरी पूजा से मैं प्रसन्न नहीं होता, और प्रजातिभ्याम अर्थात वैष्णवी दीक्षा से भी मैं इतना तुष्ट नहीं होता हूँ। भगवान बोल रहे हैं, जीव को सही बात इनका अनुवाद, इज्जा पूजा प्रजाति वैष्णव दीक्षा, मैं तो सब लेके आया हूँ, नहीं याद शक्ति कम है मेरे पास। और क्या क्या बोलते हैं, न तपसो न उपसमेन वाह, बोलते हैं कि किसी प्रकार का वो समाधि, तप समाधि इत्यादि, और उपशमन का अर्थ भगवान निष्ठा। बोले मेरी निष्ठावान व्यक्ति को भी मैं उतना उनके ऊपर प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना मेरे भक्त के भक्त के ऊपर मैं प्रसन्न होता हूँ। हरे कृष्णा, बोलिए हरे कृष्णा, जोर से बोलिए हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज की, गोपाल कृष्ण महाराज आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण विशाभूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। क्योंकि प्रभु जी ने ऑलरेडी मेरे को 5 मिनट दिया है, तो 5 मिनट में मेरा गाला बैटरी चार्ज होती है, तो फिर 5 मिनट में कोई क्या बोल सकता हूँ। ऐसे महाराज के लिए बोलने की तो 2 घंटा लगेगा मेरे को, क्योंकि पूरा लाइफ जो है महाराज के ही चरण में मैंने सेवा किया, वो मेरे जीविशी है। भले मैं प्रभुपाद जी का शिष्य हूँ, तो दोनों दीक्षा प्रभुपाद से ये वृंदावन धाम में हुई है, लेकिन जब मैं ज्वाइन हुआ यहाँ वृंदावन में, तब महाराज यहाँ के जीविशी थे, गोपाल कृष्ण महाराज। उस समय गृहस्थी थे वो, और वो पूरा भारतवर्ष के एक ही जीविशी थे वो गोपाल कृष्ण महाराज। तो उन्होंने उनके अध्यक्षता में तो मेरे को सेवा प्रदान की, उन्होंने अपना प्रेम दिया मेरे को। तो मेरा मन लगा प्रभुपाद की संस्था में सेवा करने का, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्रभुपाद जी जाने के बाद बहुत सारे मेरे गुरु भाई तितर बितर हो गए। कभी कोई गौड़िया मठ में चला गया, कोई कहाँ, लेकिन गोपाल कृष्ण महाराज मेरे को कहीं नहीं जाने दिया। मेरा मन को जो है एकदम प्रेम भक्ति में लगा दिया। अलग अलग सेवा, अलग अलग मेरे को पूरा बिजी रखा उन्होंने। हाँ, तो गोपाल कृष्ण महाराज का जो प्रेम है मेरे प्रति बहुत अनन्य है। जैसे मेरे को 4 साल मेरे को जो है पुणे का सेंटर मैंने खोला है। 82 में महाराज ने मेरे को वहाँ भेजा पुणे में। 4 वर्ष में पुणे में प्रेसिडेंट था। वहाँ प्रवचन कीर्तन सब, हाँ, राधारमण महाराज मेरे असिस्टेंट थे, जानते हैं सब। और उसके बाद फिर महाराज ने मेरे को, जसोमती ने सूरत का प्रेसिडेंट बनाया, तो वहाँ मैं प्रेसिडेंटशिप में 4 साल सूरत का प्रेसिडेंट था। तो उसके पश्चात 7 वर्ष जो है मैं बम्बई में मेंबरशिप डायरेक्टर था। सब गोपाल कृष्ण महाराज की कृपा है। वो मेरे को कहीं नहीं जाने दे रहे थे, आपको ये करना है, ये सेवा करनी है। बहुत प्रेम, पूजा वगैरह जितने भी सेवा है महाराज ने मेरी से प्रेम भाव से कराए इस्कॉन में, क्योंकि उस समय भक्त लोग बहुत कम थे। हम लोग केवल प्रभुपाद के शिष्य लोग थे सेवा में। तभी आजकल तो हजारों भक्त हो गए, भक्त की कोई कमी नहीं है। तो लेकिन उस समय बहुत कमी थी, इसीलिए गिरिराज महाराज, श्रीधर महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, ये तीनों ने मेरे को बहुत अच्छी तरह से संभाला है। मैं उनका जो है आभार मानता हूँ। मेरे गुरु भाई वो साक्षात मेरे हृदय के टुकड़े हैं। तो उन्होंने मेरे को बहुत प्रेम से संभाला। तो मैं अब तक इसलिए इस्कॉन में मैं जो है प्रेम भाव से रह रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ। मैं गृहस्थ बना तो भी मेरे सब गृहस्थ की जिम्मेदारी गोपाल कृष्ण महाराज ने सब बच्चों को पढ़ाए लिखाए का सब ट्यूशन सब महाराज ने मेरे को दिलाया, ताकि मेरे को कहीं इधर उधर तितर बितर भटकना नहीं पड़ा। क्योंकि मैं कलेक्शन करता था, आई वॉज मेंबरशिप कलेक्टर ऑल्सो, पुजारी ऑल्सो, आई वॉज मैनेजिंग, लेक्चरिंग, कीर्तन सब महाराज उत्साहित करते थे। मैं प्रेसिडेंट से बोलते थे, प्रभु 10 वर्ष प्रभु को लेक्चर देने के लिए देते हो कि नहीं। मेरे सामने उनको बोलते थे कीर्तन उनको देना चाहिए, लेक्चर प्रवचन देना चाहिए, इसे उत्साहित करते महाराज। हर्ष में कहीं भी मेरा नंबर पहले लगाते थे। अभी भी ये पहले की घटना है, यहाँ पर कार्तिक की घटना है। और धर्मात्मा प्रभु बैठे हैं। तो कार्तिक में क्या है कि मतलब प्रभुपाद का डिसअपीयरेंस डे में तो सब भक्त का नाम डाला था उसने, जो ये प्रभुपाद जी का ये कर रहे थे। तो सबका नाम डाला लिस्ट में बोलने के लिए स्टेज में प्रभुपाद जी के बारे में, लेकिन मेरा नाम नहीं था वो लिस्ट में। तो फिर मेरे साथ में जो है मेरे गुरु भाई थे, वो सन्यासी है, नाम नहीं लेता, लेकिन हम दोनों मुंबई में पुजारी थे। वो हेड पुजारी है, अभी रायपुर के प्रेसिडेंट है। तो अभी तो वो मेरे सामने बैठे थे कि बोला प्रभु जी मेरे को बोला, क्योंकि हमारा नाम तो आ नहीं रहा है, ये तो सब विदेशी लोगों का नाम उच्चारण कर रहे हैं बोलने के लिए, तो क्या करना चाहिए। तो मैं जाके उसको बोला जिसने जो नाम अनाउंस कर रहा। मैं बोला ये प्रभु जी ये महाराज सन्यासी है, कम से उसका नाम डाला। तो उसने बोला नहीं, पहले विदेशी भक्त बैठे हैं तो उनका नाम होने के बाद तब नंबर दूंगा। मैं बोला ऐसा नहीं होता है, ये सन्यासी है, उनका नाम पहले देना चाहिए। फिर बाद में उसका नाम डाल दिया उन्होंने, तो फिर मेरा नाम नहीं डाला था। तो फिर बाद में वो महाराज बोले कि सिद्धार्थ महाराज बोले कि चलिए प्रभु जी चलते हैं, शायद आपका नाम नहीं डाला उन्होंने, चलते हैं, मैं नीचे जाता हूँ, चलिए थोड़ा घूम फिर के आ जाते हैं।
तो फिर मैं नीचे आने लगा, गोपाल कृष्ण वहाँ महाराज वहाँ बैठे थे स्टेज में। तो महाराज ने मेरे को नीचे उतरने देते, बोला ए दधिभक्ष दज बोलो बोलो कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे। तो वो भक्त ब्रह्मचारी मेरे पीछे आने लगे, प्रभु जी महाराज बुला रहे आइए आइए आइए। तो धर्मात्मा प्रभु भी बोले महाराज बुला रहे, प्रभु जी आइए आपका नाम डाल रहे हैं, आपको बोलना है स्टेज में। तो मेरे को बोला, तो महाराज हर्ष में मेरे ऊपर इतने दयालु कृपा मेरे को बहुत इंकरेज कर, पूरा लाइफ में महाराज ने बहुत प्रेम दिया है। मैं महाराज का बहुत आभार मानता हूँ। कभी भी कहीं भी पहले मेरा नंबर पहले डालते प्रभु जी नहीं बोलते, दधिभक्ष महाराज कैसे हैं आप, ठीक है, आपका सब ठीक चल रहा है, सेवा ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। महाराज इस तरह से मेरे को बोलते थे, हर समय मेरे को उत्साहित करते थे महाराज। हाँ, तो उनकी कृपा से तो वो भी अभी 2 साल पहले बम्बई में जो है जब 40 वर्ष का ये हुआ था एनिवर्सरी, तो उस समय जयपताका महाराज महाविष्णु महाराज नेपाल से मेरे को जो है गुरु शिव का जो है लेटर प्रदान किया। जयपताका महाराज बोला कि दधिभक्ष प्रभु, क्योंकि नेपाल में कोई इंग्लिश सब लोग इंग्लिश बोलते हैं लेकिन प्रवचन समझ में नहीं आता, नेपाली बोलने वाला गुरु चाहिए। प्रभुपाद जी एक ही शिष्य है नेपाल, पूरा नेपाल भर में। तो इसलिए जयपताका महाराज ने इंट्रोडक्शन किया, तो जीबीसी ने सब फॉर्म वगैरह सब तैयार, धर्मात्मा प्रभु को मालूम है, तो पंचगौड़ प्रभु सब बम्बई के जितने भी अथॉरिटी है, भीम प्रभु देवकीनंद सब ने मेरा साइन किया। तो फिर महाराज ने भी, गोपाल जी महाराज बोला वो वेरी गुड। तो महाराज को साइन करने वेरी गुड बोला। जितने भी टर्म एंड कंडीशन थी गुरु शिव की, तो महाराज ओके करे, कहीं ऐसा नहीं बोले नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो महाराज ने सब अच्छी तरह से मेरा गुरु शिव का जो है महाराज ने साइन करके ओके करके साइन फॉर्म भर के अपना हाथ से खुद भरा, मुकुंद महाराज ने फॉर्म भरा दिया तो महाराज के द्वारा। तो महाराज ने ओके कर दिया। महाराज बोले ठीक है, आप प्रचार करिए नेपाल में, ठीक है, दीक्षा दीजिए, सब इस तरह से। तो महाराज जो भी मैं मेरा कार्य के लिए कभी महाराज ने नहीं कहा। मेरे को हर समय पूरा लाइफ गोपाल कृष्ण महाराज मेरे को बहुत बिजी रहा। इतने महाराज महान हैं, प्रभुपाद की सेवा के लिए वो बहुत लिखते हैं। बीबीटी पूरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रचार, जहाँ भी महाराज जाते हैं, बम्बई में हमारा मैराथन होता था, तो बोलते हाँ मैंने वो कोटा देते थे हम लोगों को, इतना मेंबर आपको बनाना है। लाइफ मेंबरशिप मैराथन होता था जनवरी में, दिसंबर में गीता मैराथन होता था, तो महाराज हमको कोटा देते, उस हिसाब से हमको पूरा कोटा पढ़ना पड़ता था। महाराज समय पूछते थे कितना हुआ आपका, कितना हुआ, इस तरह से प्रेम भाव से कभी वो चेष्टा ही नहीं करते, इतना ऐसा लगता है कि और सेवा करे और सेवा करे। इतना उत्साह महाराज के द्वारा मेरे को मिला है। और तो महाराज महान है, भक्त है। अभी भी देखिए कभी भी आते हैं महाराज जो है प्रभुपाद जी के मंदिर में रह रहे हैं, गेस्ट हाउस में रहते हैं। बाकी गुरु आते हैं अपने अपने शिष्य के घर में रहते हैं, कोई मंगलारती नहीं आता है, तो लेकिन अपने गुरु शिक्षक का घर में जाके खाना पीना मजा मारते हैं, वहाँ रहते हैं। लेकिन गोपाल कृष्ण महाराज जो है गेस्ट हाउस अपने, चाहे भी बम्बई में जाओ, आते हैं, हर दिन मंगला आते, एक दिन मंगला आते उनकी मिस नहीं होती है। ये वेरी गुड एग्जाम्पल है गुरु का। तो इस तरह से गोपाल कृष्ण महाराज का डायरेक्ट कनेक्शन प्रभुपाद जी के थ्रू है। प्रभुपाद जी अनन्य सेवा उन्होंने की, पूरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन, भागवत गीता का प्रोटेक्शन, गुरु जी मतलब ये बीबीटी का सब, इस तरह से महाराज जी बहुत प्रभुपाद जी ऊपर, प्रभुपाद की सेवा के लिए महाराज बहुत चिंता करते थे। अभी भी देखिए जहाँ भी महाराज जा रहे हैं, गोपाल कृष्ण महाराज, मैं सुना बम्बई दिल्ली में भी 15 मंदिर बना दिए। तो दिल्ली में कभी भी मैं जाता हूँ तो महाराज मेरे को देखते थे, आइए मेरे को आगे करते हैं, पर प्रभु जी को बोलने के लिए दीजिए। इस तरह से महाराज मेरा बहुत इज्जत बढ़ाया है पूरा लाइफ में। तो इसलिए कभी भी बोलते हैं आपके बाल बच्चे बहुत अच्छे हैं, लड़का बहुत अच्छा कीर्तन करता है, अच्छा है, आपका लड़की अच्छी है, सब अच्छा। हर समय मेरे को डिमांड प्रभुपाद जी मेरे को बताते हैं कि दधिभक्ष महाराज बोलते, कभी नहीं बोला दधिभक्ष इधर आओ, कभी नहीं बोला महाराज ने। ही नेवर चेस्टाइज मी लाइक दिस। बोले दधि महाराज कैसे हो आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, कोई समस्या तो नहीं है आपके पास, नहीं। तो महाराज हर समय मेरे को खुश रखते थे। तभी मैं अभी सब मेरा काम महाराज ने सब पूर्ण किया है। हाँ, गुरु शिव का भी मेरे सब दायित्व तो मेरे को पूरा महाराज ने, उनके कृपा से मैं अभी गुरु भी बन गया है, दीक्षा भी देना शुरू कर दिया मैंने। तो ये सब महाराज की कृपा है, गोपाल कृष्ण महाराज जी। ऐसे प्रभुपाद जी मेरे गुरु है, मैं प्रभुपाद का शिष्य हूँ, लेकिन महाराज मेरे शिष्य गुरु है। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Navayavadveyadya Yamanta Dhammavaditi Namyasina Sojanti Nanisyanti Yato Tataha. Always engaging in the activities of devotional service, devotees feel ever increasingly fresh and new in all their activities. The all-knower, the super soul within the heart of the devotee, makes everything increasingly fresh. This is known as the Brahman position by the advocates of the absolute truth. In such a liberated state, Brahma Bhuta, one is never bewildered, nor is one lament or becomes unnecessarily jubilant. This is due to the Brahma Bhuta situation. Served by His divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. A devotee is inspired by the super soul within the heart to advance in devotional service in a variety of ways. The devotee does not feel hackneyed or stereotyped, nor does he feel that he is in a stagnant position. In the material world, if one engages in chanting a Shiv name, he will feel tired after chanting a few times. However, one can chant the Hare Krishna Maha Mantra all day and night and never feel tired. As chanting will increase, it will come out new and fresh. Srila Rupa Goswami said that if he could somehow get millions of years and tons, then he could relish spiritual bliss by chanting the Hare Krishna Maha Mantra. There is really nothing uninspiring for a highly advanced devotee. In Bhagavad Gita, the Lord says that He is situated in everyone's heart and that He helps the living entity forget and remember. By the grace of the Lord, the devotee gets inspiration. Tesam sadava yuktanam bhajatam priti purvakam. To those that come devoted and worship me with love, I give the understanding by which they can come to me. As stated, those engaged in auspicious activities in devotional service are guided by the super soul, described in this verse as Gyan, one who knows everything, past, present and future. The super soul gives instructions to the sincere, unalloyed devotee on how he can progress more and more in approaching the Supreme Personality of Godhead. Srila Jiva Goswami in this connection says that the super soul, the plenary expansion of the devotee, Srila Jiva Goswami in this connection says that the super soul, the plenary expansion of the personality of Godhead, exists in everyone's heart. But in the heart of the devotee, he reveals himself as ever increasing new. Being inspired by him, the devotee experiences increased transcendental bliss in the effusion of his devotional service. Om Jnana Sivanandasya Jnananjana Shavasya Chakshuran Militan Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manovisam Sattam Yana Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadanti Sam. Vandeham Shri Guru Shri Uda Padakamlam Shri Gurun Vaishnavanasya Shri Rupam Sajajatam Sahajana Laguna Tanvidam Dham Sadevam Sadvaitam Savadhutam Paritana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahajana Lalita Shri Vishakanitamishta Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopal Gopita Radha Santa Namaste Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Shri Gaur Bhaktamita Hare Krishna Navyava Hridaya Yatyo Dhamanta Dhamma Vadidhi Namuyanti Na Sochanti Na Vishyanti Yato Gataha. So this verse is being spoken by the Supreme Personality of Godhead. As we have seen in the previous verses, the Lord was very pleased, satisfied by the austerities that the partakers had executed. For 10,000 years, the partakers had chanted the mantra, glorifying the Supreme Lord that was given to them by Lord Shiva. And the Lord
of the potatoes, he appeared before them, and in the verses that we are reading, the Lord is emphasizing various characteristics of the class of devotional service. In the verse that we discussed yesterday, for example, we read how devotional service is all auspicious and how devotional service enables one to terminate all attachments. Now in this verse and prayer book, many significant points emerge. The Lord says in the beginning that always engaging in the activities of devotional service, devotees feel ever increasingly fresh and new in all their activities. So this is very important to understand, because as we have experienced, the materialists can never understand how can somebody chant the same mantra day and night. I know when the Hare Krishna movement, as we were getting established in the United States, the anti-cult people were accusing us of brainwash. And one of the charges that these psychologists used to bring up is, how can you chant the same mantra of the song again and again and again? You people must be crazy. You chant the same song, isn't it? These natural psychologists are busy analyzing the devotees. One of the reasons why we conclude that we are crazy is they repeat the same thing again and again. And from the material angle, they have no experience of any such situation where the same song can be repeated day in and day out. For example, in the material world, you have these hit parades. All over the world you go, you have these hit parades. In India, Deepmala, in the Western side, and in these hit parades, you never have the same song on the top for long, isn't it? When you have these big singers like Michael Jackson, they all have their days. And then gradually, the recordings at one time were on the top of the chart, they fade away. So the material world, our experience is, no one can hear the same song again and again. No one can read the same book again and again. No one can see the same picture again and again, isn't it? They see a movie, doesn't matter how big the movie may be, then after some time they want to see another movie. They hear a song, you read a book, after some time they want to give it up and read another book. Because that is the nature of materialistic activity. Because there's nothing transcendental in them, or we get tired of these activities very fast. And then we want something new. And a search for newness takes us across frontiers, across different experiments, but ultimately it is no satisfaction. As Prahlad Maharaj said, Punat Punat Sarvita Chavanana, simply chewing the tune, trying to different means to find some degree of satisfaction, but actually there is no degree of satisfaction. So in sharp contrast to this, the Lord over here is saying that those who engage in devotional service, they are feeling freshness in all their activities. In other words, the devotee who is chanting, reading, serving, never feels stagnant. You never think, I've chanted now so many times, now let me chant a new mantra. I've chanted so many times and now let me switch to something different. The devotee never thinks I've read the Srimad Bhagavatam so many times, now I should read something else. No. In fact, Prabhupada told us once that he was reading the Bhagavad Gita and he remarked that even I read the Gita every day. So why should my disciples not read? I wrote the Gita as purpose, still I read it every day. So the Lord here is confirming the transcendental nature of devotional service. The ground devotional service is beyond three modes. We are supposed to have a lecture series on the three modes. Anyway, devotional service, because it is beyond the three modes, it is not at all affected by the material Lord. And as one surrenders to the Lord, one feels increasing freshness in the execution of devotional service. That is why we can chant the names of the Lord day and night for our entire life. How many times a day was Haridas Thakur chanting? Over 300,000 times a day. Isn't it? Every day from morning to night. Even after the chants sermon, now when he eats, till he has completed the required chanting.
Did he ever get tired? No. In fact, even when he was king, in different marketplaces, he did not stop. Because he was getting such great pleasure in the chanting for the holy name. So, we must understand that this is a transcendental activity, and if we execute devotional service sincerely under the direction of a bona fide spiritual authority and following a bona fide process, not that we concoct the process. Our process is not to concoct, but just to follow the process established by the modified acharyas, then there will be reciprocation from the process. Then there will be reciprocation from the Supreme Lord. Why? Because devotional service is absolute. And because devotional service is absolute, when you execute devotional service, you feel the reciprocation. Just like with regards to the holy names of the Lord. And he said, Namasamni Krishna Ketanasa Vigraha Purnasubha Nitya Mukta Dhanna Svam Nama Namina. Hare Krishna. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पवित्र तिथि है, एकादशी का तिथि है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का आविर्भाव तिथि है। एक शुद्ध भक्त के गुण का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। जैसा गुडाकेश जी बहुत प्रभावी ढंग से बतला रहे थे कि महाराज की जो सफलता है कृपा सिद्धि का फल है। इस बात से हम 100% सहमत हैं। और एक तरह से गुडाकेश जी अपनी बात तो कहे ही, अनेक भक्तों के हृदय की बात को बहुत प्रभावी ढंग से वे प्रस्तुत किए। लेकिन इसके साथ ही महाराज का कुछ स्वभाव सिद्ध गुण है। हम बहुत गुणों पर नहीं चर्चा करेंगे, केवल एक गुण कहना चाहेंगे कि महाराज भगवान के प्रति स्वाभाविक लगाव है, भगवान की सेवा में उनकी स्वाभाविक रुचि है। आप सब लोग अनुभव किए होंगे, देखे होंगे कि कितना व्यस्त जीवन है। कभी कभी बहुत देर को आते हैं और फिर भी सुबह भगवान की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। तो यह तो मंदिर की बात है। वे व्यक्तिगत रूप से अपने रूम में भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, शालिग्राम जी की सेवा करते हैं, और बड़े ही अनुराग के साथ। स्वाभाविक झुकाव है, ठाकुर जी के प्रति लगाव है, सेवा में रुचि है। और केवल ठाकुर जी की सेवा के प्रति ही रुचि नहीं है, ठाकुर जी की सेवा करते हैं और अपने व्यवहार से, अपने वचन से भक्तों को तृप्त करते हैं। और खास करके कोई भक्त किसी कठिनाई में है तो महाराज अपने प्रभाव से या और अपने क्षमता से उसका तत्काल सहायता करने का प्रयास करते हैं। तो यह गुण हमको बहुत प्रभावित करता है। और भगवान की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, यही एक उन्नत भक्त का लक्षण है। और महाराज के इस गुण से मैं बहुत प्रभावित हूँ। अनेक गुण हैं, अलग अलग भक्तों के मुख से आप उन गुणों को सुनेंगे। हम इस अवसर पर इस गुण के प्रति आकृष्ट करना चाहता हूँ। और एक लोभ भी मन में है कि महाराज के
आशीर्वाद से हम लोगों के हृदय में भी ऐसी भावना आवे। हरे कृष्ण। So everyone has a different aspect. Many people say Maharaj is worshipping the deities every day, and Maharaj is doing management, and Maharaj is pushing book distributions. There are many aspects of a spiritual master. So I also know Maharaj from sitting in the meetings and doing management together, many things. But my special aspect I would like to highlight is Maharaj's very strong determination in Kumbh Mela. So I think the first time I met Maharaj in Kumbh Mela was in 2001, Allahabad Kumbh Mela. And Maharaj came pretty early when there was not many tents up, hardly anything was there. And my wife was there, and she had cooked the prasadam and made the chapatis. And even 20 years later, when Maharaj sees my wife, he says, "Oh, I remember you made those wonderful chapatis in the tent in Kumbh Mela." So, then the years are going on. Then Maharaj's health was not so good. And I remember last time in Nasik Kumbh Mela, the Maharaj was coming. And he literally was sick. He had some disease where he got frozen. So after the long car rides, they had to massage him a little bit to get him going. And you would have thought a sick man like that, but hey, when the bathing day was coming, there was a Maharaj leading the procession, no problem. And then it got even a couple of years later in Ujjain Kumbh Mela, Maharaj was also there. He was sitting on the Rath. And he also had that freezing problem. So every 2 minutes he would move a little bit, he'd get up, he'd sit down. And then this Kumbh Mela administration had made some not so good management, and the whole procession came to an halt. We were standing and standing, it was hot, the sun was shining. Finally the bulls got wild, they couldn't tolerate all those people in that kirtan, so the bulls were running away. We had to move the cart by hand. And some other Maharajas, they just called it the quits and went back to the temple. And there was Gopal Krishna Maharaj, and him and Sachi Gosunda, he's also here from Vrindavan, he went by walk in this heavy crowd, 2 kilometers down to the bathing ghat, took the bath amongst all the other sadhus, which is pretty wild, and had to walk at least another 2-3 kilometers until he finally could take a rickshaw and go back to the camp. So Gopal Krishna Maharaj ki jai. Very determined. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज व्यास पूजा महोत्सव की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सामने देखिए, गुरु कृष्ण प्रसादे दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ये सामने। आज से 2 साल पहले महाराज के 75 साल व्यास पूजा में गए थे, तो ऐसे 3 अल्टर थे, तो एक में पुस्तक थे। तो वो महाराज का विशेष एक इस्कान में पुस्तक छापना और वितरण करना, प्रभुपाद जी का जो एक भाव था, उसके मूर्तिमान स्वरूप थे। तो हमने उधर पूछा था कितने अल्टर हैं उनसे, तो सबने कहा 2 है। मैंने बोला तीसरा देख के बताओ। और तीसरा पुस्तक थे, और भगवान के पुस्तक तो भगवान से अलग है नहीं। तो यहाँ ये जो सेटिंग है जिसने भी की है वो बड़ी अद्भुत है। और तिथियों को देखेंगे तो पहले कृष्ण आए, कृष्ण
फिर गुरुजी आए प्रभुपाद, फिर प्रसाद में हमारे को गोपाल कृष्ण महाराज मिले। तो ये ऐसे देखेंगे तो ये भी परंपरा अपने आप से बनती आ रही है। तो ये अब ये हमारे बस की बात नहीं है, ये तो ऊपर वाले ने बनाया है सारा कि कौन कब आएगा कैसे आएगा। तो ये एक विशेषता महाराज के। और दूसरा, जैसे हम गोस्वामियों के लिए लिखते हैं, मंडलपति थे, तुच्छ वित्त छोड़ के सबको और वृंदावन में चले आए। तो महाराज श्री 77 साल पहले, आज 77 साल महाराज का जन्मदिन है। महाराज जब हमारा तो महाराज से दर्शन 85 के करीब, 85-86 ऐसे कुछ समय है हुआ। अब 82 में महाराज दीक्षा गुरु हुए, 82 में, और 81 में महाराज ने संन्यास लिया था। तो बात जो हम करने जा रहे थे, हमारा महाराज के साथ जो विशेष संबंध है, वो मुझे जब मिलते हैं कहते हैं मैं भी पाकिस्तान से हूँ महाराज, मुझे ये कहते हैं। कहते हम भी लाहौर से आए। महाराज कहते हम भी लाहौर से आए। और जब मैं कहता हूँ महाराज को, जब महाराज कहते हैं लाहौर से आए, तो लाहौर का एक अर्थ होता है लाहौर, और ले आओ, जैसे अणी और है ना। तो महाराज हर साल घूम फिर के सब मंदिरों में जाएंगे, नवंबर में कहेंगे और किताब और लाओ और करो। पहले कितने किए थे? 5000, अभी 10,000। तो और लाहौर, तो महाराज ने अपना जहाँ से आए वो लाहौर को ऐसे पकड़ के रखा है कि और लाओ और लाओ और लाओ, भक्त भी और लाओ, पुस्तक भी और वितरण करो, मंदिर भी और बनाओ, सब और ही और चल रहा है। ये आनी और अभी तक चल रहा है यहाँ। तो ये लाहौर की परिभाषा। और विशेष बात जो महाराज श्री के साहस की कहें, वैसे है बहुत डेलिकेट है। महाराज का शरीर को देखेंगे तो बहुत डेलिकेट है। डेलिकेट का मतलब कोमल है बहुत, और बोलना भी बहुत ही धीमा और मधुर है, हर चीज़ में बहुत कोमल। परंतु साहस ऐसा है कि सोवियत रशिया में प्रचार करने का शुभारंभ महाराज ने किया। जब वो समाजवादी था, पूरा नास्तिक था, उसके बीच में महाराज कैसी परिस्थितियों में वहाँ गए और पुस्तक वितरण के माध्यम से वहाँ कार्य शुरू किया। और प्रभुपाद जी ने महाराज को वहाँ का जीबीसी बनाया। और फिर भी सोवियत में जाना, फिर भी हिम्मत है, बहुत जाते हैं। परंतु दूसरा कोमल महाराज का पाकिस्तान में जाना, ये और भी खतरनाक है। और महाराज 2 बार पाकिस्तान से होके आए हैं। एक बार तो आए थे तब हम वहीं थे, वहीं हमारा महाराज से भेंट हुआ और दर्शन हुआ था, तब महाराज वहाँ पधारे थे। और फिर अब जब हम यहाँ थे तो महाराज ने कहा मेरे को जाना है वहाँ। और महाराज ने एक पैंट और टी-शर्ट लिया और एक टोपी ली। मैंने कहा महाराज इसकी ज़रूरत नहीं है। बोला क्यों? मैंने बोला आप अंदर जाएंगे ना तो वहाँ आपको अंदर लेने आ जाएंगे, कस्टम से आपको कोई पूछेगा नहीं। हम व्यवस्था आपका, तो आपको तो वैसे व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है, भगवान आपके साथ है, फिर भी वो सारा कुछ व्यवस्था हो जाएगी। तो महाराज दोबारा भी, तो अभी भी सब जगह मंदिर इतने सारे, केवल एक एनसीआर दिल्ली में 15 मंदिर बने हैं और बन रहे हैं, परंतु इतने ही मंदिर पाकिस्तान में महाराज की प्रेरणा से बने, ये कोई नहीं जानता है। 14-15 से ज़्यादा जगहों पे मंदिर है। और ये 11 तारीख को वहाँ प्रभुपाद के 125 साल का उत्सव
सिंधु नदी के बीच में एक स्थान है, साधु बेला उसका नाम है। उसमें बहुत बड़े स्तर पे मनाया जा रहा है, और हजार नहीं तो 4-5 हज़ार लोग आएंगे पाकिस्तान में। और उसके पीछे महाराज यहाँ से आर्थिक भी सहायता उन भक्तों की करते हैं, अभी तक उनको दर्शन भी देते हैं। और हमारे से प्रायः जो महाराज का चर्चा, जब भी फ़ोन महाराज को हमको करना होता है तो केवल पाकिस्तान की समस्या के लिए कहते हैं ये सेवा उधर कैसे करना है, ये आपको करना है। जब मिलेंगे तो एक ही बात। तो ये हम कहते हैं कोमल स्वभाव और इतना बड़ा साहस महाराज का ऐसी जगहों में प्रचार करने का जहाँ बहुत से लोग सोचते क्या विचार भी नहीं करते। ये महाराज का जो विशेषता हमने देखा। उसके बाद जैसे वृंदावन चंद्र महाराज कह रहे थे कि सबका, वैसे हम उस दृष्टि से देखें कि भाई नवदा भक्ति में जो अर्चन भक्ति है वो जैसे कि महाराज का जीवन है, एक सदा ही अपने स्वयं ठाकुर का अर्चन हो या मंदिर की मंगल आरती जहाँ जाएंगे। बस इसके साथ एक बात कह के मैं कथा को विराम देता हूँ। महाराज का तो जीवन पूरा समर्पण, कैसे मैं बात वो कह रहा था आपको मंडलपति, वो मैंने बीच में छोड़ दी कि महाराज तो चलो यहाँ से कनाडा गए तो फ्रांस गए, कनाडा गए, और वहाँ 68 में प्रभुपाद जी के 3 महीने प्रभुपाद जी मॉन्ट्रियल में रहे, 3 महीने, और 3 महीने रोज़ गोपाल कृष्ण महाराज क्लास सुनने जाते थे कंटिन्यूअसली। 3 महीने गए और दूसरे साल, ये मई की बात है, और प्रभुपाद जी कहते पहली सेवा प्रभुपाद जी की क्या मिली गोपाल कृष्ण महाराज को? प्रभुपाद जी का रूम साफ करने की। और 1 साल के बाद मई में फिर दीक्षा हो गया। फिर भी प्रभुपाद ने गोपाल कृष्ण महाराज को यहाँ भारत में तब बुलाया जब यहाँ काम सब तैयार हो गया, पुस्तक छापना है। तो मैं बात जो कह रहा था कि बहुत बड़े अच्छे पद के ऊपर उस ज़माने में 68-9 में MBA करने वाले, मैं समझाऊँ भारत के अंदर कोई 10, 15, 25 भी नहीं होंगे। उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब डॉलर रुपये के बराबर भी नहीं था। 10 रुपया, 7-8 रुपया डॉलर तो हमने भी लिया है। उस ज़माने की बात करते हैं। तब उसको छोड़कर सब और यहाँ आके संन्यास लेना, ये हमारी परंपरा जो गोस्वामियों की है। जैसे मंडलपति थे, तुच्छवत छोड़ के और आके रह गए, ऐसे वो सब त्याग के आना। गिरिराज महाराज को जब गोपाल कृष्ण महाराज उस बॉम्बे में आए तब भी बहुत बड़ी कंपनी में जो है वो उसके डायरेक्टर मैनेजर थे, बड़ी गाड़ी थी। तो गिरिराज महाराज को कहते हैं ये गोपाल कृष्ण महाराज की बहुत बड़ी गाड़ी है और आप इसके साथ प्रचार करने जा सकते हो। तो गिरिराज महाराज बोलते हैं हमारे बॉम्बे मंदिर के काम के लिए गोपाल कृष्ण महाराज के साथ हम गए। अब कोई सारे बड़ी समस्याएं थी। वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस का सेक्रेटरी बाहर गया, गोपाल कृष्ण महाराज अंदर घुस गए मुझे लेकर, किसी को पूछा भी नहीं। तो बिना पूछे अंदर घुस गए और फिर उसने बड़ा सम्मान के साथ हमारी बात भी सुनी और हमारा काम भी कर दिया। तो महाराज के, और आज कल नहीं परसों आपने देखा है कि मोदी जी के साथ प्रभुपाद जी के सिक्के का समय। तो ये समझिए कि महाराज का ये जो इस्कॉन के, कल मैंने एक मोदी जी के प्रवचन के 2 शब्द पढ़े, उस दिन मैंने सुना भी था। ये तो इस्कॉन के विश्व के इतिहास में मोदी जी ने ये कहा कि प्रभुपाद जी भारत की भगवत गीता और भक्ति को विश्व में ले गए और इस्कॉन के भक्त एम्बेसडर हैं भारत के पूरी दुनिया के लिए। ये मोदी साहब ने जो कहा है, असल में ये कहा जाए कि ये एक प्रधानमंत्री माननीय के शब्द इस्कॉन के लिए बहुत बड़ा गौरव है कि भारत के एम्बेसडर हैं। अब तो आप जब कहीं वीज़ा लेने जाएं किसी भी ऑफिस में ना, तो लिखना एम्बेसडर हूँ भारत का मैं। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।
अच्छा होता मैं यहाँ रहा होता और सुना होता कि भक्त लोग क्या क्या बोले हैं, क्या बाकी है। लेकिन मैं दूसरे गौशाला नहीं यज्ञशाला में मैं था। वहाँ परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज दीक्षा का समारोह हो रहा था, इसलिए मैं वहाँ बैठा था। तो समय भी मैं समझता हूँ 1 बजे तक समय दिया गया है ना, कितने बजे तक नहीं और मैं लास्ट स्पीकर नहीं हूँ ना, बहुत होंगे ना, इसीलिए मुझे आदत भी है, मैं एकदम संक्षेप में ही रहूँगा। आज परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव तिथि है, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। 77 तो जैसे हम लास्ट में आए थे, सार्वभौमपुर जी बता रहे थे, महाराज एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, करनाल पंजाब, इवन तक करनाल में ही महाराज कुछ दिन तक रहे थे। लाहौर से 47 से पहले ये नहीं हो तो मैं संक्षिप्त में रहना चाहता हूँ। परम प्रिय लोग गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी जो हम लोग ज्वाइन कर रहे थे, मैंने बाद के भक्त लोग, जैसे मैं जब ज्वाइन किया तो हम लोगों को यही धारणा थी यहाँ पर वृंदावन में कि प्रभुपाद जी हैं और प्रभुपाद जी के उत्तराधिकारी गोपाल कृष्ण महाराज। उस समय गोपाल कृष्ण महाराज जी सन्यासी नहीं थे, गृहस्थ। तो ऐसा ही था कि हम लोगों को मन में ऐसा बसा रहता था कि यही एक तरह से गार्जियन है प्रभुपाद जी के बाद में। प्रभुपाद जी के तिरोभाव के बाद कैसी स्थिति की यही प्रभुपाद जी के उत्तराधिकारी हैं, कम से कम वृंदावन में। तो हम लोग अपने अभिभावक के रूप में, गार्जियन के रूप में, और गोपाल कृष्ण महाराज जी का इतना अच्छा स्वभाव, स्नेहमय सौभाग्य था कि हम थोड़े समय तक प्रभुपाद जी के समय में भी यहाँ इस मंदिर में रहे थे। प्रभुपाद जी के दर्शन करने का और कुछ कथा भी सुनने का अवसर मिला था। यद्यपि कि हमारी दीक्षा तो नहीं हो पाई प्रभुपाद जी से, लेकिन संपर्क में बार बार रहना, 1 साल लगभग ऑन एंड ऑफ रहते थे। तो प्रभुपाद जी के प्रति अनुराग था, प्रेम था, श्रद्धा थी। प्रभुपाद जी के जाने के बाद एक जैसे अभाव की स्थिति थोड़े समय तक लगती थी, लेकिन जब गोपाल कृष्ण महाराज संपर्क में आए और इनका शासन, तो प्रभुपाद जी का जो अभाव था वह अब खटकता नहीं था। लगता था कि नहीं, हम लोग ऐसा ऑर्फेन जैसा महसूस नहीं किए प्रभुपाद जी के तिरोभाव के बाद। ऐसा नहीं लगा कि हम कोई हमारा नहीं है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा था कि अभी भी कोई ऐसा समर्थ व्यक्ति है, प्रभुपाद जी का प्रतिनिधि है हम लोगों को, जो कि बढ़िया से संभाल सकता है। तो भारत के उस समय प्रभुपाद जी के पास जितने भक्त लोग आए संपर्क, विशेषकर इस एरिया में वृंदावन और बॉम्बे इत्यादि, तो वह प्रभुपाद जी के जाने का जो उसकी तो पूर्ति नहीं की जा सकती। प्रभुपाद जी के जाने से अभाव हो, उतना तो पूर्ति नहीं किया जा सकता है। लेकिन सब्सटेंशियल स्नेह और समाधान और गाइडेंस परम पूज्य श्री गोपाल गोस्वामी महाराज से हम लोगों को मिलता रहा। तो इस अवसर पर महाराज के प्रति हम बहुत आभारी हैं। इस पुण्य तिथि पर उनके गुणों को याद करते हैं और हम फिर भविष्य से भी इस तिथि को उनसे प्रार्थना कर रहे हैं और आशा भी कर रहे हैं कि महाराज अपना जो स्नेहिल स्वभाव है, वात्सल्यपूर्ण स्वभाव है उनका हम लोग के प्रति बनाए रहें। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण।
I am very fortunate to be among all of you. But I am unfortunate in the sense, most of my dealing with the Maharaj is mostly on managerial issues. Managerial issues means not comfortable one. But Maharaj is tolerating also me many times. But sometimes Maharaj is very humble. Even though I had been junior, much more junior to him, even 20 years back, some of the decision I push it. If it is right, he accepts it. And you are all fortunate. Your association is different level. My association is managerial. It's a curse to be a manager in ISKCON, because you will be losing the charm of the devotional relation. But still, I have enjoyed many of the Maharaj special nature and favor. Some other time, recently one thing I came to know in the email conference, Maharaj in the Corona first phase, he got Corona, something in the beginning. Then Rishi Kumar Prabhu was supposed to write everyday update on Maharaj health update. Maharaj wrote the mail in one word. I am not so big person to write everyday update on my health. I am not so big person so that you can write on my health update every day. I am okay. It is common cold, it's long time I had. It's nothing to do. He finished the topic. Then no mail came. That's a Maharaj nature. Another time some devotees told, somebody told Maharaj, why don't you write your biography or autobiography? What I have done? I have not done anything. Simply some 2-3 temple I go instrumental in doing. What else I have done? What is there to write? My life is nothing else. No, what is some nice word he told? I forgot. There is no big fun or something in my life history. Nothing to specially mention. Like Maharaj is more a practical man. He doesn't talk about any special nature or favor, and to find it so that we can talk about great about length or something. He is very, very straightforward man, and he is on business. He wants the result, and he is happy with that. And another thing is, only few Maharajas or devotees, they don't have any personal account in ISKCON. One of them is here. Very few, they don't have personal account. They don't have any personal property. They don't have anything. And this is because Maharaj is very, very simple. One side you look like Maharaj because he's managing a big areas, big GBC, big temple, so many things. He looks like he is very big and very great, but other end is very, very simple. He is holding all this position, all these things just to serve Prabhupada and Krishna. That is his mood. He is holding everything just to serve Prabhupada and Krishna. Because my dealing with him for more than 20 years as a bureau member or regional governing body member, and interaction I found, his interest is only this moment, and he is ready to sacrifice anything this moment can be successfully going on. And very few you can find it, and he has that mood, and only who has not understood his real mood only will talk about something different about him. But his nature is very, very concerned about ISKCON. He always tells, I am fully ISKCON man. I am fully ISKCON man. And he never deviated anywhere, any place, anything. That's a very special nature. And maybe I am unable to present on any of his personal dealings or something. And another very important thing is I found, whichever temples he is there or whenever he is there, his hospitality can be never beaten by anybody. And in whoever visits, but not me or anybody,
Maharaj at least asked 5 times, are you comfortable? Even if the full comfortable, he'll ask, are you comfortable? We feel shame. We are here to serve him, not to take service from them. Such a shame situation to bring. Maharaj, I told you, are making me shame, making us shame by asking all this. Once what happened is in Bureau meeting, summer lot of senior devotees were engaged in the Delhi. In the guest house, Maharaj accommodated me and one of the Bureau member outside that guest house. Maharaj felt bad for that at least 3 times. See, sorry, I could not accommodate him. Maharaj, what is this? You are making us shame by repeatedly telling. He was really concerned. Then prasadam, every arrangement will be nicely made. Finally come and ask, everything is fine? Any problem, any difficulty? We go to search for difficulty. There is no difficulty. That type of hospitality I very rarely found in the other temples. And it's Maharaj's greatness. He has trained the people also in the culture, how the hospitality is going. These are the few things I remember immediately. I was not expecting I will be called. Radhakanda called me to talk. And no, many are ready to, waiting in the line to talk. Thank you very much. All glories to Gopal Krishna Maharaj. Jai Sri Gopal Krishna Maharaj ki jai. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदेश तारिणे। महाराज श्री के विषय में तो 5-7 मिनट का विषय तो है नहीं है। महाराज श्री के साथ में जो उनका दर्शन था 76 से उनके सानिध्य में मैं रहा हूँ। जब मैं वृंदावन में ज्वाइन किया तो महाराज श्री यहाँ के जीवित थे और मथुरा जन्म स्थान पर प्रोग्राम था। उस समय भारतीय भक्त बहुत कम होते थे, बहुत कम। विदेश के लोग बहुत होते थे। हम लोग उन लोगों से बहुत डरते थे, दूरी बना के रखते थे। बड़ा भारी भारी शरीर होता था। तो हम लोग ये देखते थे कि भाई भारतीय शरीर वाले संत कहाँ मिले। तो महाराज जी बहुत एक्टिव थे, सभी भक्तों को इकट्ठा करके बस में चढ़ा रहे थे। हम लोग बिल्कुल न्यू थे, उस समय नए थे। तो महाराज हिंदी में बोले, चलो चलो बस में बैठो। हमें नहीं बोले, सभी भक्तों को बोले। और हम लोग डर से पीछे वाले सीट में बैठे। पीछे वाले सीट में बैठे तो अंत में बस भर गया तो महाराज श्री भी आकर के साथ में ही हमारे बैठ गए। मैं बोला कि तो वही हैं जो हमें कह रहे थे कि बस में बैठो। हमें ये नहीं पता था कि जीबीसी हैं यहाँ के। बाद में मंदिर में आया तो मैंने पूछा कि ये जो संत हैं कौन हैं। बोले कि यहाँ के मालिक हैं, ये जीबीसी हैं यहाँ के। मैं बोला ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ बैठा। फिर बड़ा सानिध्य रहा महाराज जी के साथ। भारतीय शरीर था महाराज का। लोकनाथ महाराज जी को भारतीय में देखा तो बड़ा स्नेह बढ़ा हम लोगों का, क्योंकि हिंदी भाषी थे, हम लोग हिंदी बोलते थे। वो लोग प्रभुपाद जी के ऊपर बाद में जैसे राधारमण महाराज बता रहे थे कि एक गार्जियन के रूप में महाराज यहाँ सबको देखा। प्रभुपाद जी के जाने के बाद महाराज श्री ने कभी भी हम लोगों को अनुभव नहीं होने दिया कि तुम लोग अनाथ हो। सबके विषय में कुछ न कुछ पूछते रहते हैं महाराज। अभी थोड़े दिन पहले राधाकांत प्रभु इनवाइट किए थे गुरुकुल में, तो मुझे भी खबर मिला कि वहाँ जाना है। मैं भी गया। तो चलते चलते महाराज जी के साथ हम वहाँ बैठे तो महाराज जी चलते चलते बोला कि भक्त लोग देखभाल करते हैं आपका ठीक से। मैं बोला कि जी सब लोग देखते हैं अच्छा से। यानी पर्सनली भक्तों को पूछते हैं, एक एक भक्तों को पूछते हैं। जैसे शंखधारी प्रभु ने कहा कि महाराज श्री केवल इस्कॉन के हैं,
इस्कॉन के अलावा किसी को जानते ही नहीं हो। आप इस्कॉन के अलावा किसी उनसे श्लोक पूछो, कोई कथा पूछो, वो नहीं बता पाएंगे आपको। केवल प्रभुपाद जी के विषय में बात करते हैं। और जो भक्त का 26 गुण बताए गए हैं शास्त्र में, वो महाराज जी में उपस्थित है। 93 में महाराज जी ने कहा कि मेरे साथ चलोगे? मैं बोला कहाँ? तो बोले कि चलो रसिया घूम के आते हैं। उस समय जैसे सार्वभौम प्रभु बता रहे थे, उस समय कम्युनिस्ट था, वहाँ पर संस्कृति का प्रचार नहीं होने देते थे बिल्कुल। तो महाराज श्री कपड़ा अपना थोड़ा दूसरा भी लिए बैग में। अब मेरे को भी बोले कि तुम भी ले लो, बाल थोड़ा कम कटाना, बाल नहीं कटाना ज़्यादा। तो बोला क्यों? बोले कि वहाँ थोड़ा खतरा है। इतने बताया मेरे को। महाराज जी के साथ में जब प्लेन में बैठे तो महाराज जी ने अपने घड़ी दाहिने हाथ में लगाते हैं। घड़ी वो देखने में इजी रहता है, उनको इसलिए लगाते हैं। देखा घड़ी और दोपहर का समय हुआ, और दोपहर के समय में महाराज ने गुरुवाष्टक अपने मन में ही गाने लगे। यशस्त्री संध्याम का वर्णन है ना, 3 टाइम गुरु की वंदना करनी चाहिए, सुबह, दोपहर में और शाम को। विश्वास चक्रवर्तीपाद जी जो गुरुवाष्टक लिखे हैं उसमें 3 बार के वर्णन करते हैं। तो महाराज श्री गाने लगे उसको। उसके बाद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु गा रहे थे। एयरप्लेन में बैठे हैं, एयरपोर्ट पर जब हम लोग गए तो वहाँ भी मंत्र का जाप कर रहे हैं। बोले कि तुम भी जपो, हम लोग जा रहे हैं दूर देश में, कोई खतरा न हो जाए, ऐसे भगवान के नाम लेते रहें। महाराज जी में अनेक ऐसे गुण हैं जो भक्तों को पर्सनली ध्यान रखते हैं। एक एक भक्तों से पूछते हैं ठीक हो, और कोशिश करते हैं कि कोई भी भक्त इस्कॉन से बाहर न जाए कभी भी। किसी भक्त में यदि कोई किसी प्रकार का दोष भी है, कोई गलती भी है, तो उसको सोचते हैं कि संभाल करके इस्कॉन में ही रखो। उसको कोई ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरत पूरा करते हैं, आवश्यकताएँ पूछते रहते हैं, तबीयत ठीक है, कुछ ज़रूरत हो तो बताना, वहाँ के अथॉरिटी से बात करते हैं। ये महाराज जी में अनेक प्रकार के अद्भुत गुण है। जितने साधु का लक्षण होना चाहिए महाराज जी के जीवन में ये सब अपने उतार रखे हैं। बम्बे में जब महाराज श्री जाते थे, बम्बे में हम भी रहे 2 साल, तो वहाँ प्रोग्राम करते करते 1-2 बज जाता है रात्रि को, और महाराज 2 बजे सो रहे हैं और 3:30 बजे उठ करके नहा धोआ करके 4:30 बजे मंगल आरती में उपस्थित है। हमेशा उत्साहित रहते हैं। कोशिश ये करते हैं कि मेरे को ये सब कुछ मिले। मायापुर में आप दर्शन कीजिए, अल्टर में होंगे, कुछ न कुछ आरती करते रहेंगे। वृंदावन में आते हैं, आरती करते रहेंगे। जो अर्चना प्रति है महाराज श्री में विद्यमान है। साधु हैं। एक बार महाराज जी ने कहा कि मैं जब भी प्रभुपाद जी के पास जाता था दर्शन करने, तो कोशिश करता था कि मैं कुछ न कुछ बुक्स लेकर के जाऊं, प्रिंट करा करके। तो प्रभुपाद जी के सामने बुक्स ले जाते थे। 7-8 साल पहले की बात है। महाराज श्री घूम रहे थे, यहाँ पर जा रहे थे वॉकिंग में, मैं भी साथ में गया। तो महाराज बहुत तेज़ चलते हैं, जब वॉकिंग करते हैं बहुत तेज़ चलते हैं। तो बोले कि आप चप्पल लगाए हो, नहीं चल पाओगे, तुम लौट जाओ। बोले कि नहीं हम साथ चलेंगे आप। तो कुछ लोग बराह घाट पर बैठ कर के बीड़ी पी रहे थे, खटिया पर बैठ के चरपाई पर। तो महाराज जी ने रुक के कहा कि ये जितने ब्रजवासी लोग बीड़ी खाते हैं, पीते हैं, ये सब भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो मैं बोला कि मन में कहा कि मैं क्या जवाब दे सकता हूँ आपके सामने, आप। तो मैं बोला कि आप बताएं महाराज। बोले कि नहीं, बहुत लोग रहते हैं, आप पूछताछ करो कि जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। इतना कह के आगे बढ़ गए। इस्कॉन के प्रति यानी प्रभुपाद जी के प्रति इतना अटूट विश्वास, इतनी श्रद्धा
इतना समर्पित बहुत कम संतों में देखा जाता है। इतना बड़ा समर्पण जितना महाराज जी का समर्पण है। आज प्रभुपाद जी सुबह में इंग्लिश में बता रहे थे 4 आश्रमों की बात, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ब्रह्मचारी के विषय में प्रभुपाद जी ने कहा कि ब्रह्मचारी को जो कुछ भी है वो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। ये गोपाल कृष्ण महाराज में ये गुण पाया जाता है। हर वस्तु, हर संपदा, कोई भी चीज़ मिलता है वो गुरु को समर्पित कर देते हैं। फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि यदि आपकी साधन भक्ति भी करना है तो अपने स्पिरिचुअल मास्टर की अध्यक्षता में ही करनी चाहिए। ये भी गुण महाराज में मिलता है। प्रभुपाद जी के अलावा कुछ भी किसी संत के विषय में वो नहीं जानते, किसी संत के विषय में नहीं जानते। तो ये है अटूट विश्वास, गुरु के प्रति श्रद्धा। आज वही कारण है कि महाराज हर पोजीशन पर रह करके इसको पार करते करते आज इतने हाई लेवल पर पहुँचे हैं, जो कि महाराज जी को देखने मात्र से जीव झुक जाता है, अंदर से प्रणाम करने लगता है, पवित्र होने लगता है महाराज को दर्शन से। आप बहुत संत लोग महसूस किए होंगे इस बात को कि महाराज को देखते ही व्यक्ति झुकने लगता है, उनकी आवाज़ सुनने के लिए ललायित रहता है वो संत। मैं 76 से आज तक, अब थोड़ा दिन आँख के कारण में दूरी हो गया है, लेकिन मैं उन्हीं की अध्यक्षता में और हिज रोहिनेस लोकनाथ महाराज की अध्यक्षता में काम किया। इन लोगों ने मुझे बहुत शिक्षा दीक्षा दिया। बहुत सुंदर बात, अनेक ऐसे प्रसंग हैं महाराज के विषय में। यहाँ तो बहुत कम समय है क्या बताया जाए, लेकिन मैं महाराज के विषय में बहुत कुछ अच्छा ढंग से जानता हूँ। उनका आचरण बहुत पक्का है, पवित्र है। भूल कर भी कहीं गलत जगह नहीं देखते हैं महाराज श्री, भूल कर भी कहीं गलत नहीं बात बोलते हैं। किसी व्यक्ति को यदि गुस्सा भी उनके अंदर में हो तो उस व्यक्ति को इतना मीठा बोलेंगे और सत्य बोल जाएंगे, सत्य बोल जाएंगे और मीठा भी बोल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हम लोगों को भक्त बनना चाहिए, ऐसे महाराज कहेंगे। बोलना कब सुधरेंगे हम लोग, ठीक रहना चाहिए। गीता में लिखा है ना, सत्य बोलो और मीठा बोलो। अब सत्य मीठा कैसे हो सकता है? लेकिन महाराज श्री ने वो सत्य को इतने मीठा ढंग से बताते हैं कि व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। नहीं, ठीक कह रहे हैं महाराज। मैं ये सब बड़ा महसूस किया हूँ, बड़ा अनुभव किया हूँ, बहुत साथ रहा हूँ। मैं पर्सनल उनका असिस्टेंट भी रहा हूँ। इंग्रेज रखते हैं, यदि आप फ्री बैठा है कोई असिस्टेंट तो रूम में जाके कपड़ा सब बिखेर देंगे, बोले कपड़ा ठीक करो सब। हम लोग समझते थे बात को, कपड़ा सब, एक कपड़ा उनको पहनना है, सब बिखेर देंगे, बोले देखो कपड़ा ठीक कर देना, सब गड़बड़ हो गया। तो महाराज श्री के बहुत गुण अच्छे अच्छे हैं, सभी गुण अच्छे हैं उनमें। जो कृपालु, अकृत्य द्रोह, सत्य सार समा, निर्दोष बदान्य, मृदु सूचि अकिंचना। अभी शंकरधारी प्रभु ने कहा कि महाराज जी के पास अपना कुछ भी नहीं है। शायद सर्वमा प्रभु ने कहा कि अपना कुछ भी नहीं है, न उनका अपना रूम है, न कोई अपना घर मकान बनाए, न मोटरसाइकिल गाड़ी कोई दिए। दिल्ली में एक गाड़ी भी जब महाराज को किसी ने दिया, उनके एक शिष्य हैं विद्याश्री प्रभु, तो जो पुरानी गाड़ी है उसको बोले कि इस गाड़ी में जितने सीनियर डिवोटी आएंगे प्रभुपाद जी के डिसाइपल, उनके सेवा में लगाना इसको। इतना शुद्ध विचार, इतना ऊंचा विचार बहुत कम सुनने और देखने को मिलता है। महाराज श्री निरंतर प्रभुपाद जी के सेवा में अपने जीवन को लगा रखे हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभुपाद जी से कि उन पर अपनी कृपा देते रहें, उनके चरणों में महाराज की रुचि हो और हम सब की रुचि महाराज के चरणों में हो। महाराज श्री की कृपा हम सब पर बनी रहे, दया बनी रहे, हम सब की भक्ति बढ़ता रहे, ऐसी महाराज के जन्म दिवस पर हम इच्छा रखते हैं। धन्यवाद आप सब। जय श्री कृष्ण।
गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवजदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So I was thinking just a few minutes ago, shall I speak in English or in Hindi? And then Dadi Bhaksha Prabhu was also telling me, अब हिंदी में बोलना है, ठीक है, इसलिए हम हिंदी में बोलते हैं। और श्रील प्रभुपाद भी उन्होंने एक बार बोला, जब यहाँ पर आए थे विदेशी भक्ति को, उन्होंने बोले थे कि आपको हिंदी सीखना है और हिंदी भाषा में आपको प्रचार करना है, अच्छा रहेगा। तो इसका प्रभाव तो रहेगा। और मैंने भी देखा है कि जब आप बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, अगर प्रयास कर रहा है शुद्ध हिंदी बोलने के लिए, विशेष करके भगवान के बारे में, तो लोगों को अच्छा लगता है। तो आज बहुत शुभ दिन है, शुभ तिथि है, चतुर्मास के द्वितीय मास भद्र मास, जो विशेष मास है, क्योंकि इस मास में सबसे पहले कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि स्वयं भगवान आदि पुरुष श्री कृष्ण यशोदानंदन गोपीनाथ का जन्म आविर्भाव तिथि है, मनाता है। हमने मनाया है 3 दिन से पहले। तत्पश्चात तो शिला हमारे ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के नंदोत्सव के दिन, जब नंद बाबा, क्योंकि बहुत सालों के बाद तो कृष्णा पुत्र के रूप में आया है, लगभग 50 से 60 साल के थे नंद बाबा, तो उत्सव मनाए थे। और उसी दिन तो शिला इसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, जो हमारे संस्थापक आचार्य है, शक्ति वैश्य अवतार है कृष्ण के, महाप्रभु के, हमारे महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन के एक सेनापति है, और उनके तो नवमी तिथि उनका विवाह हुआ। तो इसके 2 दिन के बाद तो श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का आविर्भाव हुआ। शुभ तिथि एकादशी तिथि, अन्नदा एकादशी। प्रभुपाद भी कहते थे 3 शुभ तिथियाँ हैं शास्त्र के अनुसार, एकादशी तिथि, अमावस्या तिथि एवं पूर्णिमा तिथि। और मास में तो एक अमावस्या है और एक पूर्णिमा है, लेकिन 2 जन्माष्टमी, ये 2 एकादशी तिथि है। उसी दिन ज़्यादा जप कर रहा है, तो उसी दिन उनका जन्म हुआ, उनका आविर्भाव हुआ। और तब इस मास में इसके बाद भी जो भद्र मास के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि श्रीमती रानी का आविर्भाव हम मनाते हैं। और आपको भी मालूम है कि वास्तव में कृष्ण के पास पहुंचने के लिए श्रीमती रानी के शरण में आना है, अन्यथा कृष्ण के पास नहीं पहुंच सकता है। राधे राधे श्याम मिला दे, सब ब्रिजवासी कहते हैं जब परिक्रमा करता है वृंदावन के, गोवर्धन के। तो कृष्ण विषय विग्रह है, इसके बाद तो श्रीमती रानी आश्रय विग्रह है, और वैसे ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु विषय विग्रह है, और साथ ही साथ उनके आश्रय में हमको आना है।
आशय विरगा है, तब आगे जा सकता है। किंतु ये भी है कि हमको समझना चाहिए तो तुरंत कृष्ण महाप्रभु के पास नहीं पहुंच सकता है, कृष्ण के महारानी के पास भी नहीं पहुंच सकता है, लेकिन उनके प्रिय भक्त, गौर प्रिय बाप, गौर प्रिय जन या कृष्ण के या रानी के प्रिय भक्तों के पास हमको जाना है। ये भी आशय विग्रह के श्रेणी में है। तो श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण महाराज, श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, कृष्ण बलराम श्री राधा श्याम सुंदर के प्रतिनिधि है। उनकी कृपा से हम ब्रज में रह सकता है, हम वृंदावन में रह सकता है, ठाकुर जी की सेवा कर सकता है और अच्छे तरह से भजन कर सकता है। तो ये यहाँ के बहुत सारे भक्त लोग के दीक्षा गुरु है, और यहाँ के दूसरे जो के शिष्य नहीं है, लेकिन दूसरे के शिक्षक गुरु है। जैसे प्रभु जी भी बोला है, बहुत सारे भक्त लोग हैं, मैं भी मानता हूँ हमारे शिक्षक गुरु हैं, तो उनकी कृपा से हम तो यहाँ पर सेवा कर सकता है। और उनके जैसे प्रभु जी ने बोला है, ये राधा वल्लभ प्रभु और दूसरे भी, कि उनमें ये है कि भगवान के प्रतिनिधि, भगवान के शुद्ध वैष्णव के ये सर्वगुण संपन्न है। जिसको लेकिए 24 गुण है शुद्ध वैष्णव के, और जो सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कृष्णाय के शरणम, पूर्ण रूप से शरणागत है, तन मन वाचा हमेशा कृष्ण की सेवा में लीन है, और प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकता है कि जब यहाँ पर आता है तो तुरंत कमरे में आके, गेस्ट हाउस रूम में फर्स्ट फ्लोर में उनका कमरा है, मतलब सन्यासी है लेकिन फिर भी कहाँ पर तो रहना है तो दिए गए हैं, लेकिन आसक्त नहीं है, भगवान के प्रति आसक्त है, कमरे के प्रति आसक्त नहीं है, लेकिन कहाँ पर रहना है, स्नान लेना है, तुरंत वहाँ पर जाता है लगभग। इसके बाद क्या करता है, सबसे पहले मंदिर की ओर जाता है आरती करने के लिए। अगर शाम के समय आता है तो अंतिम जो शायन आरती जो होता है इसके लिए आता है, करने के लिए, आरती करने के लिए, और हमेशा कृष्ण बलराम की आरती करता है। हमेशा कभी नहीं देखे कि राधे श्याम की गौनीता की है, कृष्ण बलराम की आरती करता है। कृष्ण बलराम मंदिर ही है तो कृष्ण बलराम की आरती करते हैं, और सुबह प्रतिदिन जब यहाँ पर है कृष्ण बलराम की आरती करता है। और जैसे जो गुण भी उल्लेख किया है शास्त्र में कि जो वैष्णव, जो चुकुति के वैष्णव सेवा में लीन है और उनके आहार और निद्र जो होते बहुत कम है, तो बहुत लोगों के पास जाता है। तो जब यहाँ पर भी आता है तो मीटिंग भी होती है प्रेसिडेंट से और मैनेजमेंट के साथ, देखता है कि क्या क्या चल रहा है और आदेश भी देते ये करना वो करना है, और उनके सब शिष्य उसी समय आ जाते हैं उनके पास और सबको समय देता है। जब वहाँ पर जाता है तो आप देख सकते हैं कमरे के बाहर हमेशा 10, 15, 20 भक्त लोग हैं, महाराज से बात करना है, और परम दयालु है, उसका सबको समय देता है और सबसे पूछता है आप कैसे कर रहे हैं, कैसा है भजन, कैसा है जप कर रहे हैं प्रतिदिन, और कोई तकलीफ तो नहीं है। और इसके बाद लगभग तो इसके बाद फिर से शाम को आरती करते, इसके बाद वापिस आ जाता है और थोड़ा सा प्रसाद पाते। इसके बाद दूसरे भक्त लोग भी सेवा कर रहा है लगभग 10, साढ़े 10 बजे तक। इसके बाद सो जाता है 10:30 या 11 बजे। इसके बाद जल्दी उठता है, मंगलारती करता है। उनके आदर्श उदाहरण है परम वैष्णव के कि कैसे संत भजन करना है। और ये है कि तो ठाकुर जी की सेवा जैसे गुरुवाष्टक में उल्लेख किया है, शिव विग्रहाराधन नित्यनाना सिंगार तेन मंदिर जना दो, तो शिष्य को बताते हैं ठाकुर जी सेवा करने के लिए। लेकिन उदाहरणार्थ के लिए
खुद भी करता है यहाँ पर मंगलातिक प्रतिदिन। हाँ, क्योंकि गुरु जी तो आचार्य है, तो आचरण करके भी शिक्षा देता है कि कैसे सदाचार होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए। और मृदुल वाणी से हमेशा बात कर रहा है, शिव कृष्ण के बारे में बात करता है या महाप्रभु के बारे में। और कहाँ पर भी आप जा सकते हो कि मंदिर अगर महाराज वहाँ पर है तो जैसे दूसरे प्रभु जी भी बोला है, शंकरदारी प्रभु, अगर कोई आता है तो तुरंत पूछता ठीक है, तो रहने के लिए व्यवस्था है, प्रसाद मिला है। मैंने भी जब सबसे पहले यहाँ पर मैं आया था 1980, तो कभी कभी हमको दिल्ली जाना था और वहाँ पर मंदिर में तो पहले लाजपत नगर में था, बहुत छोटा सा मंदिर था, और वहाँ पर जब विदेशी जाते थे तो बात भी नहीं करते थे। लेकिन थोड़ा सा जब बाद में आया ग्रेट कैलाश में तो स्थिति थोड़ा सा और अच्छा था। लेकिन फिर भी एक बार वहाँ पर आए थे दोपहर के समय, वृंदावन से बहुत कष्ट से वहाँ पर पहुँचते थे, तो हाईवे नहीं था, ये वाला पिक्चर यमुना एक्सप्रेस नहीं थी और ये सामने वाला हाईवे नहीं थी, तो छोटी सी रास्ता और लगभग हमेशा ट्रैफिक जैम था, तो 6 घंटा लगता था। तो वहाँ पर पहुँच के दोपहर के समय तो थोड़ा सा भूख लगता है और सोचे मंदिर में जाते तो प्रसाद तो मिलता है दोपहर के समय। तो एक बार हम 3 भक्त थे वहाँ पर पहुँच गए थे। अच्छा, प्रभु जी से वहाँ पर कोई 2-3 प्रभु जी थे, प्रसाद है, और दूसरे प्रभु जी भी लोग प्रसाद पाते थे। प्रसाद ना, जाओ जाओ, प्रसाद नहीं है यहाँ। मैंने सोचा क्या बात है, और दूसरे लोग भी प्रसाद पाते थे, लेकिन शायद विदेशी थे इसलिए प्रसाद नहीं मिला था। लेकिन 5 मिनट के बाद ठीक है, कोई बात नहीं है, जो भी है आगे जाएंगे, दर्शन तो मिल गया बढ़िया ठाकुर जी का। इसके बाद 5 मिनट के बाद गोपाल कृष्ण जाए थे, पहले बार उनसे मिले थे उसी समय ग्रेट कैलाश लाजपत नगर, ग्रेट कैलाश एम ब्लॉक, हाँ M19 119 ग्रेट कैलाश एम ब्लॉक 2, हाँ 119 एक घर था, लेकिन वहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे। और तो महाराज आए थे और हमको देख के तुरंत पूछे अब कैसा है, मतलब ये, लेकिन हिंदी में नहीं बोला क्योंकि हम विदेशी थे, हिंदी मालूम था लेकिन फिर भी इंग्लिश में बात करते थे। हाउ आर यू? फाइन महाराज। हैव यू गॉट प्रसाद? प्रसाद मिल गया? वो ये तो बोला था सत्य तो बोलना है, प्रसाद जो दिया ना है, बोले कि प्रसाद नहीं है। तो महाराज तुरंत रसोई में वहाँ पर गए और बोला तो उनको प्रसाद देना है। तो 5 मिनट के बाद प्रसाद आया, तो प्रसाद मिल गया। तो बहुत तो दयालु है और उनकी कृपा से तो प्रसाद मिल गया। इसके बाद जो कार्य करना था तो किया था। और इसके बाद तो क्योंकि हम उसी समय लगभग यहाँ पर है, सिर्फ 3-4 साल विदेश में थे, तबीयत ठीक नहीं था, स्विट्ज़रलैंड अमेरिका गया, न्यूयॉर्क, वहाँ से उनसे भी मिले थे एक बार। और लेकिन वापस आके फिर से बहुत बार तो यहाँ पर रहते हुए उनसे मिले हैं और मार्गदर्शन मिला है। और देखे हमेशा विनम्र भाव में रहता है, ऐसा नहीं लगता था कि एक GBC या एक गुरु है। वरिष्ठ भक्त तो है, सन्यासी थे, लेकिन विनम्र भाव में थे। आसानी से तो उनके पास जा सकता था और उनसे बात कर सकता था। तो जो ज़रूरत है भक्त लोग के लिए। और उसके बाद उनकी कृपा से भी उनकी सेवा करने की मौका मिला है, विशेष करके जब यज्ञानुष्ठान होता है, दीक्षानुष्ठान उनके शिष्य के लिए, तो हम हमेशा मेरे को बुलाते थे। वो शुरुआत में कोई दूसरा तो था ना ही, तो सबके लिए करता था, लेकिन बाद में दूसरे को भी सिखाया। और लेकिन जो बड़े महाराज, जयप्रताप महाराज, रॉबिन विंग महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज के लिए तो हमेशा तो बड़ा पुजारी बुलाता है,
तो इसलिए ऐसे करते हुए तो मौका मिला था सेवा करने के लिए। और यहाँ पर भी एक सुंदर बात, जैसे दूसरे प्रभु जी लोग बोलते थे कि उनके कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो और अपना पैसा नहीं रखता है, तो यह है कि दीक्षा अनुष्ठान के बाद तो नियम है शास्त्र के अनुसार भी को पुरोहित को और तो दक्षिणा देना है, लेकिन विशेष करके गुरु जी को दक्षिणा देना है। तो सब भक्त लोग दक्षिणा देते थे महाराज को। और इसके बाद मेरे को दिया पैसा, वो बोला ठाकुर जी के लिए है हर बार। और जब जल्दी उनको जाना था कभी तो शिष्य को बताते थे तो पुजारी को दे दीजिए और ठाकुर जी की सेवा में लगाना है। तो हर बार तो ठाकुर जी की सेवा में लगाते अपना दक्षिणा यहाँ पर वृंदावन धाम में। तो सुंदर बात है। और लेकिन फिर भी तो शुरुआत में उनके पास ठाकुर जी नहीं था, लेकिन एक दिन मेरे पास भी आया और बोला कि सोच रहा हूँ कि शालिग्राम शिला की सेवा करने के लिए ठाकुर जी की सेवा, अब क्या सोचता है? तो मेरे बोले अच्छी बात है महाराज। और इसके बाद गोनीताय आया, उसके बाद गोवर्धन शिला और इसके बाद शालिग्राम शिला और विशेष शिला। इसके बाद हर बार जब मैं उनके पास जाता था तो मेरे को दिखाई देखे ये नए शालिग्राम शिला आया है, कैसे है, सुंदर है। तो बोले ये तो सुंदर है। इसके बाद तो 10, 20, 50, 100 भी कितना है, 200 शालिग्राम है। एक छोटा सा बॉक्स है, इसमें कम से कम 150 छोटे छोटे शालिग्राम शिला है। और शुरुआत में खुद सेवा करते थे ये ठाकुर जी के और शालिग्राम के। तो लेकिन अभी वृद्धावस्था में पहुंचते हुए तो एक ब्रह्मचर्यों के साथ है और सेवा कर रहा है। और तो आचार्य है, गुरु है, लेकिन हमेशा भी नम्र भाव में रहता है। और ठाकुर जी के सम्मान में कभी कभी मेरे से पूछता था कि ये करूँ वो करूँ। और तो जो मुझे मालूम है तो उनको बताता था। और उनके अनेक अनेक गुण हैं। और सौभाग्य की बात है कि प्रभुपाद के समय से और प्रभुपाद की बहुत सेवा किया है। और ये तो विशेष करके यहाँ पर वृंदावन धाम में यहाँ पर जीबीसी के रूप में है। तो प्रभुपाद के समय से तो प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद को मालूम है कि हमारे एक अच्छे शिष्य है, इसलिए वृंदावन धाम जो प्रभुपाद ने भी बोला था कि मुंबई मेरी ऑफिस है, ऑफिस तो जाना है ठीक है, लेकिन इसके बाद तो ठाकुर जी की सेवा भी करना है। और ये मायापुर है जहाँ पर भगवान की आराधना हो रहा है महाप्रभु के। लेकिन वृंदावन के बारे में बोलते थे ये हमारे घर है, दिस इज़ माई होम। तो अपना घर है। तो लेकिन तो या जैसे अपना घर जो होता है तो उनको सौंप दिया गोपाल कृष्ण महाराज को। इससे हम समझ सकता है कि उनके प्रिय घनिष्ठ प्रिय शिष्य है। देखिए जैसे ये जो संस्कृति है, वैदिक वैष्णव संस्कृति है, पिताजी तो शरीर छोड़ने से पहले सबसे बड़े पुत्र को सब कुछ सौंप देता है। दूसरे को भी कुछ मिलता है, लेकिन उत्तराधिकारी तो सबसे बड़े ये पुत्र है और जो सबसे उनके प्रिय भी है। उनको मालूम है कि अच्छी तरह से देखभाल करेंगे संपत्ति के, वैसे ही उनको सौंप दिए गोपाल कृष्ण महाराज को। और उसी समय से अच्छी तरह से देखभाल कर रहा है जीबीसी के रूप में। और उनकी कृपा से बहुत सारे भक्त लोग सेवा में, भगवान की सेवा में यहाँ पर मंदिर में नियुक्त हैं और उनको शिक्षा देता है जिससे वो आगे जा सकता है। तो कहने एक गुण है और वो कुछ
कुछ और बोल सकता है, लेकिन दूसरे भक्त लोग ये इसलिए वाणी का विराम देता हूँ। His Holiness Gopal Krishna Maharaj ki. Yeah, everybody's talking long time. Everybody's giving lectures. Gurave Guru Chandaya Tajikaya Chadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Bhaktaya Namo Namo Panchaka Patrubhyascha Kripa Siddhivaya Vacha Patitanam Pavanavibhyo Vaishnavibhyo Namo Namo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasari Gaurabhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. His Holiness Gopal Krishna Maharaj ki. So it's always a wonderful thing to glorify devotees. Actually, Krishna take much pleasure in the glorification of his devotees than his own glorification. So, because I've tried to be very brief because the time is going. Few things is that actually I first came across Gopal Krishna Maharaj in 1984. So that time there was a Rath Yatra in New York City, and in the morning of the Rath Yatra, Rameshwara Maharaj that time announced that he announced, it just like this, Bhagavat Park is coming. So this was during the Zuna Acharya days. That time we had the 12 Zuna Acharyas, and everybody go by the name of partner names. So he announced, Bhagavat is coming. It's coming to the New York Rath Yatra. So that was my first experience with Maharaj when he came to New York in 1984. Now, some historical events that happened. In 1896, Srila Bhaktivinoda Thakur, he wrote one small pamphlet, Sri Chaitanya, His Life and Teachings. And this little booklet, he sent it to McGill University in Canada. This was 1896. And this was the year that Srila Prabhupada was born, in 1986. So this is very, very historical year. And then in 1968, ISKCON Center in Canada was opened in Montreal. And that time Gopal Krishna Maharaj was studying at the same university, McGill University. He was studying for his MA. And then this was when Srila Prabhupada, this was when Gopal Krishna Maharaj met Srila Prabhupada in 1968 in Canada. And when Maharaj came to Prabhupada, Srila Prabhupada immediately took a very liking to him. Actually, Maharaj was the first Indian devotee in ISKCON that came to Prabhupada. I was actually first Prabhupada disciple, first Indian Prabhupada disciple. So because of his expertise, Marathi expertise, because he had done this management course in McGill University, Canada. So Srila Prabhupada actually made Maharaj one of his main managers because of his expertise. And I would say he's one of the person that I will call a Prabhupada Preshta, which means very, very dear to Prabhupada, very, very dear. There was an incident that here in Vrindavan, that time
I think Gopakishan Maharaj, I think it was like a GBC that time. Prabhupada made him a GBC. But there was some sannyasis who was, because that time Maharaj was a Grihastha, he was also there. So there were some sannyasis, they were giving him a time. They were saying that how could a Grihastha be managing a temple like Vrindavan? So that time Gopakishan Maharaj, he wrote to Prabhupada that okay, he's going to resign because the sannyasis, they were giving him hard time. So he said, I want to resign from my post here. So Srila Prabhupada immediately, he wrote a letter admonishing all these sannyas who are giving him hard time, who are giving Gopakishan Maharaj hard time. Prabhupada wrote him a letter, he sent them all out of Vrindavan. He said, all of you should leave Vrindavan and go and travel and preach. And then he took Gopakishan Maharaj that said, yes, I want you to stay in Vrindavan and do the management. So there are lots of many of those great qualities that is there. So actually Srila Prabhupada had so much confidence in him, a lot of confidence that Srila Prabhupada had in him. That such confidence is very, very rare in most of the devotees that Prabhupada had in Gopakishan Maharaj. I remember in 2015, when there was the anniversary, or 40 years anniversary here in Vrindavan, and Gunanva Maharaj, he was saying how he was in Delhi and he saw so many temples which had been built under the direction of Gopakishan Maharaj. And back in the 70s, when the Mumbai temple was being built, and Mr. Shetty, who was helping the devotees so much, because devotees, they were having so many difficulties. So Mr. Shetty was make sure to devotees are not so much aroused by the society in Mumbai. So Srila Prabhupada commented to Mr. Shetty that time that just as you are making all this effort for my devotees to build this temple in Mumbai, similarly also Krishna is making you a house in Vaikuntha. So Srila Prabhupada said that to Mr. Shetty. So Gunanva Prabhu was also making a comment that just see what Gopakishan Maharaj is doing. He's built so many wonderful temples. You know, it's like everywhere you go, temples are there under his direction. He said that he's sure that Krishna is definitely building him so many houses in Vaikuntha. So you can just imagine. So it's such a wonderful devotee. And of course, many devotees have a lot of inspiration from Maharaj. And another great quality of Maharaj is that, in the ISKCON society, so much politics is there, so much opposition is there, and Maharaj has been given so many difficulties, so many opposition that has been given. But one thing about him is that despite all oppositions, despite so much difficulties which have been thrown at him, but he was always steady, he was always focused in his service. He was always focused in his project, which he's doing on behalf of Srila Prabhupada. So therefore, and of course, every temple that Maharaj is in, is always there. The first time in the morning program, his sadhana is first class, which is the example of a guru, because Anacharya is the one who teaches by example. So either Mayapur or Vrindavan, anywhere, whenever I am, I see Maharaj, he's always at the first person on the altar. So he's an Acharya. So anyway, I'm very happy to be here, to be able to say a little bit in little glorification of Maharaj. Yes, Gopakishan Maharaj ki. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasad Budaya Shrimate Gopal Krishna Goswami Namane Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasad Budaya Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarne. Hare Krishna. So I'd like to offer my humble obeisances to all of the assembled Vaishnavas,
with their blessings and permission, I would like to speak just a little something about His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj ki. Tvam gopika vrisharaves tanayanti kese sevadhikarini guru nijapad padma dasyam pradaya kurumam vrajakanane shri radhangri sevanarase sukhinim sukhado. O beloved spiritual master, Gopal Krishna Goswami, you are always in the presence of the cowherd girl, Radha, the daughter of King Rishabhanu. Please award me the service of your lotus feet, O Gurudev. You are the proprietor of devotional service. Please place me in the ocean of joy by bestowing upon me happiness in the mellows of service at the feet of Shishi Radha and Krishna in the groves of Vrajadham. Mukam karoti vachalam pankum langayate girim yat kripatamaham vande Shri Gurum Deenatarinim. Radha Samukha Samikstam Sakhi Sangha Nivasinam Tvam Aham Satatam Vande Madhavashraya Vigraha. O spiritual master, I continually offer my obeisances unto you. You are always in the presence of Srimati Radharani and very much devoted to her. You always reside in the association of her confidants, the gopis, and you are the abode of loving devotion. Gopal Krishna Maharaj would come to America in the 80s, the 90s, 2000s. I was a little girl growing up in the movement in Chicago and Michigan and California. My parents traveled around to a lot of different temples serving, and I was in Gurukul. So Maharaj would come every year from India to preach when I was little at that time. And there was two of us, two sisters, Gopi and Gora. Every time he would come, specifically when he came to visit us in LA, I was a little girl. We would be sitting in the audience of the class, and he would look straight at us and he would say, "Oh, you are here today. Make sure you come for darshan." So we were really shy and scared. He was the big, spiritual master, GBC. So very shyly and scaredly we would go to his room. So we went to his room the first time and he said, "One question." What is that question? How many of you have gotten asked a question from Maharaj? Yes? Has Maharaj asked you a question? No? He said, "How many rounds are you chanting?" Now, I was about 7 or 8 years old. So, how many rounds are we supposed to be chanting? We're supposed to be chanting 64. No, not 64. How many? 16 minimum. Now, I was 7, and I thought at least I should be chanting the amount of rounds that I am of age. So I said, "Maharaj, I'm chanting 7 and my sister's chanting age." And he looked at me and he said, "Next time, I want you to chant 16 rounds." Now we have a witness who was there. She's not here today, Vishakha Mataji. She was the witness. So the next year Maharaj came and he looked at me and he said, what did he say? "How many rounds are you chanting?" So the whole entire year, I was working and chanting 16 rounds. And by his mercy, the next year when he came, I was able to chant 16 rounds. So Gopal Krishna Maharaj has this amazing empowerment that just by his presence, he can melt even a stone-hearted person
and empower them to chant Krishna's holy names. Let's chant that Mahamantra once together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And then Maharaj said, I want you to go to every town and village and give these holy names. Gopal Krishna Goswami Maharaj ki. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. English, Hindi. Okay. ठीक है. वास्तव में महाराज श्री का जो जीवन है वो एक हम इस्कॉन के समस्त भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है. आज हम बहुत सारे भक्त जुड़ते हैं संस्था से, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स जो विचार करने की क्षमता है बहुत कम लोगों में है. कि जैसे आउट ऑफ बॉक्स का अर्थ है कि चैतन्य महाप्रभु के मिशन के लिए कार्य करना. महाराज ने अपना पूरा जीवन चैतन्य महाप्रभु के मिशन के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया. वैसे तो हम सब ने आज महाराज के बहुत सारे गुणों को सुना और वैसे ही साधुओं के अनगिनत गुण होते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रेरणा देता है जब भी महाराज जी के दर्शन करता हूँ तो जो सबसे ज़्यादा प्रेरणा देता है वो है उनका 24 घंटा श्री कृष्ण के लिए कार्य करना. एक क्षण भी हम उनके जीवन में नहीं, अगर आप देखेंगे गौर से तो एक क्षण भी ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर वो भगवत संबंधित कार्य नहीं करते हैं. आज से नहीं, बहुत सारे समय से जिन जिन भक्तों ने उनके निकट से संगत की है वो उदाहरण के रूप से बता सकते हैं कि निश्चित रूप से महाराज एक एक समय कीमती समय भगवान के लिए देते हैं. और रात को कितने भी बजे सोए सुबह मंगल आरती में आना ही है, ये तो सबसे बड़ी प्रेरणा है. हमारा मन बहाने ढूंढता है कि किस तरह से नहीं आए, और महाराज श्री जैसे व्यक्ति अगर नहीं आए तो कोई कुछ बोलने वाला भी नहीं है. इतने उच्चतम कोटि के वैष्णव है और समस्त विश्व भर में कृष्ण का प्रचार किया है, तो किसी कारण से अगर नहीं भी आया मंगल आरती तो चलेगा, क्या प्रॉब्लम नहीं. लेकिन एक आदर्श स्थापित करना कैसे होता है वो हम लोगों को ऐसे साधुजन सिखाते हैं. तो ये सबसे बड़ी प्रेरणा हम सबको लेनी चाहिए उनका जीवन से कि एक एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है और उसको किस तरह से कृष्ण की सेवा के लिए लगाना चाहिए. और दूसरा कि किस तरह से प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण करना. और ये जो मूड है, मिशन है, ये अपने शिष्यों में भी जो भी महाराज को फॉलो करते हैं, शिष्य का अर्थ है जो फॉलो करते हैं महाराज को, सभी शिष्य हैं. हाँ, उनके अंदर ये ट्रांसप्लांट करना, ये मूड ट्रांसप्लांट करना. और जहाँ भी जाएंगे आप विश्व भर में ये मूड हम देख सकते हैं कि किताबों का वितरण करना ये बहुत महत्वपूर्ण है. भागवत का वितरण करना बहुत आवश्यक है. जब भागवत लोगों के पास पहुँचेगा तब उसको लोग पढ़ेंगे. तो डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है. सिर्फ पहले तो होता था कि मैराथन के समय प्रचार होता, डिस्ट्रीब्यूशन होता था, लेकिन महाराज इस समय जोर देते कि पूरे साल भर भागवत, विशेष करके जो भद्र पूर्णिमा जो नया इस तरह से भागवत वितरण करने का जो कार्य चालू हुआ है, इससे पूरे साल भर भागवत का वितरण होता है. तो ये बहुत प्रेरणादायक है. मैराथन हर समय चलना चाहिए. तो हम महाराज श्री के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से आपकी मति भगवान और अपने गुरुदेव के आज्ञाओं का पालन करने में लगी हुई है, ऐसा ही मूड और ऐसे ही मिशन हम लोग के जीवन में थोड़ा थोड़ा आ जाए, किंचित भी आ जाए तो हम लोग बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. प्रभुपाद जी के जीवन में देखा गया है कि प्रभुपाद जी ने अपने गुरुदेव के आदेश का पालन करने के लिए सब कुछ कर दिया. और हम देख सकते हैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के जीवन में भी उन्होंने अपने गुरुदेव के आज्ञा का पालन करने के लिए अपना सब कुछ जीवन लगा दिया, काया वाचा मना सब कुछ लगा दिया. तो हम लोगों को भी महाराज के इस कार्य को आगे ले जाना है, इसको रोकना नहीं है. तो हम सब जो उनको फॉलो कर रहे हैं
तो उनके इस कार्य को आगे ले जाने से उनके ही तरह, जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं उसी तरह से उनके जैसी मेहनत करनी चाहिए, तब वास्तव में हम उनके अनुयायी माने जाएंगे। तो महाराज श्री, हम आपके चरण कमल में विनीत प्रणाम करते हैं और आपके आशीर्वाद की कामना करते हैं कि ऐसा थोड़ा सा यदि हमारे अंदर भी ये गुण आ जाए तो हम कुछ कर सकेंगे सेवा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। तो यहाँ पे उपस्थित बहुत सारे वरिष्ठ वैष्णव वैष्णवी है, विशेष करके दादी भक्ति प्रभु, मुकुंदत प्रभु, ईश्वर प्रभु और राधा वृंदावन प्रभु। तो गुरु महाराज का कई सारे जो गुण के बारे में हम कई सालों से सुन से आ रहे हैं अलग अलग वैष्णव भक्तों से। तो विशेष करके महाराज जो हर भक्त को महाराज जो विशेष सम्मान प्रदान करते हैं, छोटे हो बड़े हो या उनके माता पिता हो या दूसरे कोई भी हो महाराज। तो ऐसे घटना जो कुछ महीना पहले हमारे मायापुर के जन निवास प्रभु के जो शरीर त्याग किए, तो उनके जो अंतिम उत्सव चल रहा था उसी समय महाराज जो है अपने कमरे में थे और महाराज अपने जो स्क्रीन में देख रहे थे एक्चुअली कि उनके अंतिम ये। तो उस समय महाराज कई सारे भक्तों उन्होंने देखे होंगे क्योंकि डायरेक्ट स्क्रीन में दिख रहा था ये। तो महाराज अपने आसन से मतलब जो चेयर पे बैठे थे, महाराज उठे और उठ के सीधा महाराज साष्टांग प्रणाम किए। तो हम देख सकते हैं कि उसी कमरे में एक्चुअली बाकी कोई भक्त नहीं थे, केवल महाराज का सेवक थे, वो आना जाना कर रखती है। तो महाराज इतने ध्यान रखते हैं कि उसी समय पे भी, जबकि हमको पता होगा कि महाराज इस समय में अगर चेयर पे बैठते कभी क्लास वगैरह देते तो महाराज को तकलीफ होता है, महाराज बहुत ही अपने शरीर को इधर उधर करते हैं, लेकिन फिर भी महाराज उसी समय पे महाराज जो सम्मान देने के लिए महाराज कभी भी पीछे नहीं हटे, वहाँ पे पूरे साष्टांग प्रणाम किए। तो ये बहुत ही बड़ा जो गुण है पाया जाता है। तो इससे हमको सीखना चाहिए। देखिए वैष्णव आचार्य गाते हैं कि सकल सम्माने करिता हमी देह नाथ जाता था। और ऐसे भी कुछ साल पहले जब गौर पूर्णिमा से पहले मायापुर में जब जीबीसी का मीटिंग होता था तो महाराज पूरे दिन भर एक्चुअली पूरे व्यस्त रहते थे। सुबह मंगल आरती करके महाराज फिर वॉक में जाते थे, जपा करके फिर महाराज दिन भर रहते थे हर मीटिंग में। और शाम के समय महाराज आते थे और महाराज नरसिंह देव का आरती करते थे, तो 8:30 के बाद करीब। तो एक दिन महाराज नरसिंह देव का आरती किए, आरती करके महाराज जो बाहर आए और फिर जन निवास प्रभु को देखे तो महाराज तुरंत उनको प्रणाम किए, लेकिन जन निवास प्रभु को देख नहीं पाए कि महाराज मुझे प्रणाम किए। तो किसी ने जन निवास प्रभु को बताया कि गोपाल कृष्ण महाराज आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो तुरंत जन निवास प्रभु एक्चुअली वो भी महाराज को प्रणाम किए। तो तुरंत महाराज उनके पास गए और महाराज जाके उनको नम्रता से बोले कि क्या करूं मैं, प्रभुपाद जी ने मेरे को ऐसा सेवा दिए, क्योंकि कहा जाता है कि मैनेजमेंट सेवा मतलब थैंकलेस सर्विस ना, भक्तों को संभालना, इस्कॉन को संभालना है ना। और फिर महाराज उनको बताने लगे कि प्रभुपाद जी मेरे को ऐसा सेवा दिए, लेकिन आप अगर भगवान को प्रार्थना करेंगे, नरसिंह देव को प्रार्थना करेंगे, पंचतत्व को, राधा माधव को, तो ये अगर ये सेवा छूट जाएगा और मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना करना कि मुझे नरसिंह देव की पुजारी बना जाए। ठीक। तो इस प्रकार से देखते हैं कि महाराज जो है मतलब उनके अंदर सारे गुण पाया जाता है। और विशेष करके महाराज जो है नम्रता का प्रतीक है माना जाता है। और उससे हम देखते हैं कि कभी भी मैं जितना साल महाराज के साथ जुड़ा हूँ, प्रयास करता हूँ महाराज का आदेश को पालन करने के लिए, लेकिन कभी भी किसी भक्तों के बीच में किसी प्रकार का अगर वाद विवाद होता है या तो महाराज के जाके हम मिलते हैं और महाराज को बताते कि ये तकलीफ है उनसे, तो महाराज बोलते कि मैं संभाल लूँगा, होती है। लेकिन बाद में मुझे पता चलता कि महाराज उसी भक्तों को जो मिलते हैं जिसके बारे में मैंने कुछ बताया, तो महाराज उनको सीधा सीधा वही बात बताते हैं
किसी भक्त ने आपके बारे में ये बता रहे, तो वो भक्त मुझे जो मिलते हैं तो उनके अंदर इतना ये होता है कि प्रभु जी आप मुझे बताना चाहिए, आपको अगर कोई ये होता है तो आप महाराज को क्यों मेरे बारे में बता रहे हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि महाराज हमको बताते हैं कि आप निश्चित रहिए, उनको पता नहीं चलेगा, है ना। तो उनके अंदर जैसे कहा जाता है कि ट्रांसपेरेंसी, मतलब कोई भेदभाव नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंप्लिसिटी। तो महाराज उसी को प्रेजेंट करते हैं, सिंप्लिसिटी। तो हमको शर्म आता है कि फिर दोबारा कभी उसी भक्त के बारे में कुछ शिकायत करने के लिए हम आपस में उसको समझते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि महाराज के अंदर विशेष करके हम देखते हैं कि भागवतम जैसे पढ़ते हैं कि 12 महाजन के बारे में बताया जाता है, तो उसमें से अगर श्रेष्ठ जो माना जाएगा कि ब्रह्मा जी का, क्योंकि उनका नाम पहला आता है, वो सृष्टि के निर्माण करता है, तो उनके बारे में या वो किसी को सभी को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि महाराज जो पूरे जो मैनेजमेंट को संभालते हैं, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति को वो प्रसन्न करना चाहते हैं। ये बहुत ही विशेष गुण है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरि। तो मैं हर साल तो जाता था महाराज के व्यास पूजा में, मतलब जब से मैं इस कर्म में योगदान दिए, लेकिन इस बार एक्चुअली पता नहीं, मुझे राधा श्याम सुंदर जी यही रास्ता में मथुरा में उतार दिए कि इस बार आपको वृंदावन में रहना है। तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि महाराज जी ने जो मेरे को सेवा दी है तो मैं उसको सही ढंग से पालन करूँ आप सबकी प्रसन्नता के लिए। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी का व्यास पूजा महोत्सव की, गोपाल कृष्ण महाराज की। सबसे पहले मैं महाराज के चरण में हृदय से प्रणाम करता हूँ और उपस्थित मातृमंडली, पितृमंडली, भक्त सज्जन जो व्यास पूजा को लक्ष्य में आया, आप सबके चरण में धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। ऐसे तो मेरा हिंदी भाषा मातृभाषा नहीं है, तो बंगला मिक्स्ड हो जाएगा, जैसे क्षमा मांग रहा हूँ। गुरु तो सिंधु की समान है, तो सिंधु का बिंदु भी हम नहीं आए, हम कैसे गुरु का वर्णन करें, गुरु का गुणों का वर्णन करें। एक्चुअली मैं काफ़ी साल दिल्ली में था, कंटिन्यू नहीं था, बीच में हम प्रचार करने के लिए जाते थे, क्योंकि मेरे को पहली बार मैं 96 में जब कनाडा में घुमा के लिए गया था, वहाँ से डांट दे के मेरे लेके आया, तो मायापुर का ब्रह्मचारी यहाँ क्या कर रहे हो, चलो दिल्ली में मंदिर बन रहा हो। तो मैं सीधा दिल्ली में आया, दिल्ली में ही रह रहा, तो मेरे में मन में कोई दुख था कुछ, तो मैं प्रकाश नहीं किया। लेकिन गुरु की एक आदत है, गुण है, वो शिष्यों का वो दिल में क्या चाहता है वो समझ जाता है। तो मेरे को कोई, मैं तो मैनेजमेंट नहीं करता था, मायापुर में हम प्रचार करते थे, अरे मैनेजमेंट में डाल दिया, मैनेजमेंट मेरा नहीं आता है, अरे उसमें दुख भी है अंदर हमारा, तो किस काम बात है। एक दिन मेरे को बोला का मुक्ति था, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारे मन को कोई दुख है, कोई हमें दुख तो कुछ नहीं है, अच्छे ठीक ही है। तो नहीं बोल रहा था, अपना दुख क्यों बोला गुरु जी के, गुरु जी अगर समझ जाए तो क्यों बोला हम, तो हम नहीं बोल रहा था। तो हम गोवर्धन प्रभु के एक दिन बोला, मेरा पिता माता वृंदावन भजन कर रहा है, तो मेरा बड़ा भाई उसको पैसा नहीं है, मेरा भी पैसा नहीं है। तो गोवर्धन प्रभु ने महाराज जी को बोला, तो महाराज जी को बोला उसको जितना पैसा चाहिए तो चाहिए, तो जो कुछ चाहिए उनको पिता माता वैष्णव है, वैष्णव को सेवा करना चाहिए। तो महाराज जी पहले मैं ये सीखा वैष्णव के सेवा कैसे करना चाहिए। महाराज से पास मैं बहुत कुछ सीखा, मैनेजमेंट सीखा महाराज से। तो वैष्णव सारा गुण महाराज के अंदर है, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण मैंने सीखा, क्षमा कर दो, जितने अपराध कर रहा है क्षमा कर दो। क्योंकि मैं मैनेजमेंट में था, ब्रह्मचारी चर्चा काफ़ी साल हास्य प्रोग्राम देखता था, कीर्तन देखता था, तो कोई प्रॉब्लम आता था, जब विदेश से आते तो मैं लेके जाता था हमारी सब कुछ बोलने के लिए, तो वो बोलता था क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा। देखो इनके साथ ऐसे इनके मन में जो दुख है ना, ये दुख से आप मुक्त करने के लिए कोशिश करो। अब तुम नहीं करो, मैं बोल दूँगा उनको, ठीक है ना। हाँ,
उसमें ज़्यादा दिल्ली में ज़्यादा भक्त नहीं था, ये प्रॉब्लम होता था ज़्यादा, सबसे प्रॉब्लम होता था दिल्ली में ज़्यादा भक्त नहीं था, जो आता था कुछ दिन रहते भाग जाता था। तो वही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था। धीरे धीरे तो ब्रह्मचारी युद्ध पर हम अभी बहुत सारा प्रचार हो रहा है, प्रचार में बहुत सारा भक्त बन रहा है। तो महाराज जी का महाराज जी के पास मैं ऋणी हूँ कि मेरा पिता माता की भी देखा और मेरे को भी देखा। तो अभी कुछ दिन पहले महाराज जब देखता है तो पूछता है सबसे, आप कैसे हो, ठीक चल रहा है ना। ये वैष्णवता एक महान लक्षण है। मैं प्रभुपाद का जितना डिसाइपल देखा हो, ये दधी बख्श पो, मेरा तो दिल के बात पहले बोल दिया, मैं यार क्या बताऊँ। जितने प्रभुपाद डिसाइपल है ना, ये खास कोई भक्तों का अच्छा देखता है तो उससे मिलता है, उससे बोलता है तुम्हारी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ठीक चल रहा है। तो मैं हैदराबाद से आया था, दिल्ली में था, सवेरे मैं गुरु पूजा में गया तो मेरे को बोला मुख्यतः कीर्तन करना चाहते हो, मेरा ही है आज। हम ठीक है करेंगे। कोई देखता है तो मुख्यतः ठीक है ना तुम। कोई कारण से मैं दिल्ली से मैं वृंदावन का आश्रय लिया, क्योंकि मैं गांव में प्रचार करता था और गांव में ही फंस गया था। ये कोरोना वायरस के कारण मैं वृंदावन आया, यही मेरा दिल लग गया, अच्छा भक्त यही भजन करो, यही सेवा करो। तो महाराज का बहुत सारा गुण है, जिस कारण से आप सभी लोग महाराज जी का कृपा लेना चाहते हो। आज महाराज का व्यास पूजा का दिन है, मेरा दिल में भी इच्छा है और वासना है, कोई महाराज जी जैसे प्रभुपाद जी चरण में अपना दिल समर्पण कर दिया और हम महाराज जी के चरण में हम दिल समर्पण कर दिया और हमारी कोई त्रुटि हो, त्रुटि मुक्त करके भगवान की सेवा में लगाए रखे, यही मेरा प्रार्थना है। और आप सबसे भी प्रार्थना है जे हमारे भजन में रतिमती जन्म है, तो आप सब कृपा करें, गुरु महाराज जी कृपा करें। ये मेरा समाप्त है यहाँ। जय श्री राधे, हरे कृष्ण।